वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम कराची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। That's right. एंड ही इज़ अ वेरी ओल्ड मेंबर ऑफ द फिनटेक इंडस्ट्री। इनको बुलाने का मकसद ये था, आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखी होगी कुलसूम लाखानी के साथ मेरी एक पॉडकास्ट हुई थी, जिसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल में अपना खदशा भी जाहिर किया था कि फिनटेक इंडस्ट्री, वाइल अ लॉट ऑफ गुड स्टोरीज आर कमिंग इन फ्रॉम दैट, मुझे पर्सनली ऑन ग्राउंड उतनी स्पीड में चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ब्रैंडन फ्रॉम सादा पे भी आए थे और वो बड़ी वाइडली अप्रिशिएटेड पॉडकास्ट थी, एंड आई मीन ब्रैंडन इज़ डूइंग रिमार्केबल वर्क। बट उस पॉडकास्ट में व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो कॉन्स्टेंटली इवन ही वाज सेइंग कि आवर गोल इज़ अर्बन sort of educated Pakistanis, and that is for us the first customer that we're primarily looking at. And so for me, I'm really confused कि the rest of Pakistan, which is the majority of Pakistan, which constitutes maybe at least more than half the GDP, जो कि consistently has been kept out of the system, उसको आप किस तरह से टारगेट करते हैं? And for that, we have someone with us today, Atyab Tahir. He was formerly the CEO of Jazz Cash. He was before that the Chief Risk Officer of Tamir Bank, and has been the head of digital at HBL and the country head of MasterCard. So very diverse experience, both formal legacy banking as well as new age fintech players. Sir, thank you so much for being part of the show. My pleasure. Good to be here. मैं conversation को थोड़ा सा start करूँगा, just trying to understand a little bit about yourself. Where were you born? How was your early life and growing up? Education वगैरह कहाँ से थी? Sure. I was actually born in Libya, believe it or not. Right. So I was. My father served at the Air Force. उनकी deputation थी Libya में, and they went there. They felt it was the right time to have a third child, I guess. And after 13 years, I was blessed with the family that I was born into. And how long were you in Libya for? I think my father was there for 3 years. I spent two of the 3 years there. So you don't really have a lot of memories there, I'm assuming. No. Except जो मैंने birth certificate पे देखा है कि उसमें मेरा नाम जो है वो बहुत लंबा लिखा हुआ है. अच्छा. Yeah. वो full name of your full name and your father's full name, I'm assuming. My full name, my father's full name, and my grandfather's full name. अच्छा. अच्छा. I just found out my sister got a driver's license in Dubai. Yeah. And उनका भी यही है कि like it's like 3 of her name and then her husband's full name with middle names and everything. वो 12 words का वो है. Yeah. I think it's a Middle Eastern thing. It is, yeah. वो शजा नसब जानना चाहते हैं. तो growing up in an Air Force family, it was very exciting times क्योंकि growing from Air Force base to Air Force base, making new friends, bumping into old friends that you hadn't seen a few years. It actually shaped me for my life because मेरी ज़िंदगी ट्रांजिशन से भरपूर रही है. Right. क्योंकि 12 साल की उम्र में हमने अपना इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया था. My father retired from the Air Force. We started migrating to the US. Right. वो भी मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था to provide a better life for the youngest born, क्योंकि बाकी 2 तो पढ़ चुके थे तब तक. Right. And then, just transitioning into a new culture, understanding what being an immigrant in the United States is, what having no money is all about. Where'd you land there? Boston. Achha. My sister was already situated in Boston. One of the most expensive cities in the US, the worst place to go as an immigrant. Yeah. Well, baptism by fire, I guess. Interesting. And so you guys settled there? We settled there. There's a town right outside of Boston called Belmont. Right. तो पहले कुछ अर्सा उधर थे. फिर I ended up going to college in a neighboring state in New Hampshire. Right. Small. सॉरी आपकी बात काट रही हूँ. क्या नाम है यार उनका, वो बड़े मशहूर साहब जो हैं यार, वो जो वेरी ओल्ड बर्नी सैंडर्स, उनकी आई बिलीव जो है वो. That's Vermont. अच्छा, that's Vermont. He's from the other neighboring state. Right. Bernie Sanders is from there. New Hampshire is known for their motto, which is live free or die. अच्छा. तो मज़े की बात है, there are no taxes there. No taxes at all? No taxes in New Hampshire. No income tax, no sales tax. तो in the US? In the US. Wow, that's like capitalist heaven. Wow, अच्छा. तो उन्होंने किया है कि उन्होंने अपने बॉर्डर पे मॉल्स बना दिए हैं. मैसेच्यूसेट्स से लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने. so उनका कुछ और हो ना हो, वो इसी खाते में जो है अपनी इंडस्ट्री पूरी चला लेते हैं. और
दो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, जैसे फूड पे टैक्स है लेकिन ज़्यादा चीज़ों पे टैक्स नहीं है. Interesting. And how's the infrastructure if they don't have a lot of taxes? It's very good. I mean, how does the state make money? Federal से लेती है. कुछ चीज़ों पे उन्होंने टैक्स किया हुआ है, लेकिन दिस वाज डन टू मेक इट अ बिजनेस फ्रेंडली स्टेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सर्दी भी बहुत होती है, कोई बिजनेस भी नहीं करना चाहता. अ लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस देयर. They do have some people who live in New Hampshire but work in Massachusetts. They pay certain kind of tax. So one way or the other they make. Liquor पे tax है. Interesting. और बड़ी मज़ेदार बात है कि just wider conversation that we're going to get into later on, but how policy can be looked at in an entirely different way, because in Pakistan a lot of the times states or provinces are thinking कि how do we maximize our revenues, how do we increase our taxes. Whereas when I look at India or when I look at like just this example, तो वहाँ पर states जो हैं वो आपस में compete कर रही हैं और वो कह रही हैं कि यार how are we increasing business, how are we increasing opportunities. We in Pakistan really think about federal, we think कि nationally हम क्या कर रहे हैं, हालांकि हर स्टेट की अपनी यूनिक एक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन रियली वर्क विद पॉलिसी टू इंकरेज बिजनेसेस टू कम इन टू रियली कम्पीट विद ईच अदर. बट चले अच्छा, सो यू वर देयर फॉर कॉलेज. आई वाज देयर फॉर कॉलेज न्यू हैम्पशायर में, and while I was there I actually dabbled into some small entrepreneurial ventures. वही ज़माना था when I started my consulting as well. अच्छा. .com का ज़माना था. Right. तो कभी किसी के लिए strategy बना दी, कभी किसी के लिए कुछ कर दिया, just to keep the kitchen going. And what did you study? So I studied management information technology. अच्छा. लेकिन साथ में मैंने बहुत से philosophy courses लिए, economics के courses लिए, political science के courses लिए, because वो शौक था और एक immigrant pressure था कि बेटा कोई नौकरी वाली डिग्री होनी चाहिए. Which tough 4 years because I wasn't like the most studious person, right? तो मेरे वही mediocre किस्म के grades आते थे, तो very tough conversation with my father every 3 months or so. Right. But I made it out alive and here I am. And so that was a time when you management information systems उसके बाद essentially ये वाली space boom की थी. Yeah. And so how was your experience being there in the US, like right at the heart of it? Yeah. Also in Boston. Yeah. Where much of the innovation happens essentially, at least on an academic level though. So how was that experience early on? So being in the US? I did what any average person would do and found an opportunity based on where I was making the most money. Right. And that was investment banking. Right. And I got into fixed income trading. Okay. तो bonds की trading में मैंने Fidelity Investments के साथ अपना career शुरू किया right after college. And उसके लिए I was working in a place called Merrimack, New Hampshire. That's where the fixed income trading desk was. And moonlighting in New York quite a bit. Right. So what Wall Street banker by proxy. Just learned a little bit of fundamentals of financial services. And then 9/11 happened. Acha. Right? So everything changed. And I woke up one morning and a very good friend of mine, a friend that I had been seeing for like a year and a half, that person told me that they didn't see themselves being friends with someone who looked like a terrorist. Really? And that was like a knife to the heart, right? Straight up. Yeah, they were like, so September 16th, this person calls me and says, I don't think I can be friends with somebody who looks like a terrorist. First, I thought they were joking because they had known me for such a long time, right? But then they were like, no, I'm serious. And that sort of put me on a very different path. Then I came to Pakistan, just to take a break from everything. And then I ended up spending 3 years here when I only intended to spend 3 months. Achha. So I worked with the Asian Development Bank, with DFID. उस वक्त पाकिस्तान में लिखी जा रही थी Poverty Reduction Strategy paper. Achha. Which was part of the Millennium Development Goals for the UN. और Ministry of Human Development थी यहाँ पे, Dr. Naseem Shah lead करते थे उसे. So they had sponsored this program to write Pakistan's Poverty Reduction Strategy paper, and DFID was putting up the money for it. Right. So I ended up on that project. Then I ended up on a project with the Asian Development Bank, जहाँ पे हमने बलूचिस्तान की integrated water resource management policy लिखी, which was a restructuring of a debt into a बलूचिस्तान की integrated water resource management policy.
अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई डेवलपमेंट हुई है जनरली? लिखी गई थी। माई अंडरस्टैंडिंग है इसके, बस वो जहाँ पर पानी आ गया तो आ गया, बस पड़ा है तो पड़ा है। So कनाल सिस्टम तो वो जो ब्रिटिश देकर, वो सुनने में आता है ना, ब्रिटिश बस देकर गए थे तो वही बस है, आज तक कुछ नहीं आगे बना। So that was the thing, right? कि the carriage system was dying. The water table had gone down from 120 feet to 800 feet. अच्छा, And apple orchards in places like Mastung outside of Quetta were drying up. राइट। तो ये जो water resource management policy थी, उसके अंदर recommendations like growing olives instead of apples, because apple is a very water intensive fruit. Building delay action dams, ये जो अभी बलूचिस्तान में हुआ है with the floods. ये ऑलिव की रिकमेंडेशन हमने 2003 में दी थी, जो अब 15 साल बाद हम सुन रहे हैं कि बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया फाइनली आ गया है। So that's about the right time, right? क्योंकि olive trees take that much time to become. So लगना उस वक्त शुरू हो गई थी। Yeah. अच्छा, उसके कुछ अरसे बाद, I was not in Pakistan then, जब लगना शुरू हो गई थी. But if there's one thing that they have done right out of that policy is go to water friendly crops. ओके। और अगर डिले एक्शन डैम्स बन जाते उस वक्त, तो बहुत सा काम जो भी फ्लड ने, बहुत सा नुकसान जो फ्लड ने किया है वो शायद कदरे कम होता, बिकॉज यू वुड हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द वाटर टेबल. पानी खड़ा होता, सीप इन करता और आपका वाटर टेबल इंक्रीज होता. बट यू नो, सो डिले एक्शन डैम्स क्या होते हैं एसेंशियली? इट्स बेसिकली मड डैम जो आप वाटर फ्लो के उसमें बनाते हैं ताकि पानी खड़ा हो जाए, एंड इट जस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड रेजेस द वाटर लेवल अप. अच्छा, तो एकदम से जब पानी आता है, फ्लड करता है और ज़ाया हो जाता है सारा, उससे बेहतर है कि वो पानी आए, यू नो, वाटर टेबल को बढ़ा दे एंड देन एक्सेस. बेसिकली आप छोटी छोटी झीलें बना देते हैं, राइट. तो उसमें पानी खड़ा होता है, सीपन कर जाता है, फिर और पानी आता है, वो सीपन करता है, कुछ आगे निकल जाता है, फिर आगे जाके वो मुख्तलिफ झीलों में बैठता है. बट दैट नेवर टुक प्लेस, दैट नेवर हैपेंड सैडली. Something that looked good on the business school application, and I used it to get into Babson then. But sadly it didn't go into fruition. फिर मैंने अपना MBA किया Babson से, which is also in Boston. So I had this love affair with that city. Right. And then after I did my MBA, and for the 3 years that I was in Pakistan, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि how God works in mysterious ways, right? Because if I hadn't come to Pakistan at that time, I would not have met the person that I have now been married to for 18 years. Acha. So we met when I was in Pakistan, and in between this time, between business school and undergrad, I met the person who's now my life partner and the mother of my children. Very, very interesting. Yeah. This was while you were working for the development sector. This was while I was working as a consultant. Right. And so business school, you graduated in what year? 2007. ठीक है. And straight out of that, you came back to Pakistan? Yeah. No, I worked with Johnson & Johnson. Acha. In out of US? In New Brunswick. Yeah. The galactic headquarters, as they say. Right. And I worked in medical devices. I was slated to come back to Pakistan, actually. Because I was part of this leadership development program that they had. And I had chosen Pakistan as my market to go back into. Lekin phir Benazir got assassinated, and there was political upheaval, as there is now. Right. As there always is. And Johnson & Johnson decided not to deploy an international resource to Pakistan. Right. तब तक मेरा emerging markets के साथ एक love affair बन चुका हुआ था, because even when I was at Johnson & Johnson, I was looking at emerging markets. तो फिर मैंने मुख्तलिफ emerging markets में opportunities ढूंढना शुरू की, और एक consulting firm है जिसका नाम है Protivity. It's a risk consulting firm. Right. उनके साथ मैं कुवैत चला गया. 2.5 साल के लिए मैंने कुवैत में I helped them build business in the financial services space. How's Kuwait if you compare that to, let's say, other Middle Eastern countries like US, like Saudi or the UAE? It's like a slice of heaven where you feel like a third-rate citizen. Is it fully properly developed? Very. Yeah, it is. Well, it's a rich country, right? It's up to unka Kuwaiti dinar is like 600-700 rupees. अच्छा. पेट्रो इकॉनमी, तो सब कुछ पेट्रो इकॉनमी पर चलता है. जो वहाँ के अपने सिटीजन्स हैं, देर वेल टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट. एक्सपर्ट्स उनकी इकॉनमी चलाते थे. अब वो आहिस्ता आहिस्ता कुवैताइजेशन कर रहे हैं. इट्स नॉट रियली डेवलप्ड पर से, बट दे हैव प्रोवाइडेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ फॉर द पीपल हु आर देयर. Right. एंड देन अगेन इन द शैडोज जो उनके लेबर कैंप्स हैं और जो ऑयल फील्ड के कैंप्स हैं,
उधर जो लेबर है उसका जो हाल है वो शायद I we mean, shouldn't talk about. that's pretty much the same as barring UAE. That's pretty much what the rest of the Middle East was, right? कि पैसा आ रहा है, कमोडिटी बेच के पैसा आ रहा है, उससे आप दुनिया की हर चीज़ इंपोर्ट भी कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ आप जो है वो हर किस्म की लग्जरी भी ले सकते हैं. But over time, it's now becoming unsustainable. And so we see with the Vision 2030 with Saudi, they are aggressively trying to लोग कह रहे हैं यार NEOM many times आया ये वो, लेकिन they understand कि यार we need to follow the Dubai model, and essentially they're building the next Dubai. And they're trying to create some sort of a trade and commerce beyond their conventional. और अभी I was there a couple of weeks ago. 15% tax on all items. Value added tax कहते हैं I believe उसको. And then income के ऊपर उन्होंने crazy taxes लगा दिए हैं. The Pakistanis there aren't happy because they used to go there and earn a lot of money. तो अब वो economies वो जो ये वाला system था कि बस जी citizens well taken care of. अभी तो चलो हाई कमोडिटी प्राइसेस हैं, बट इवेंचुअली आने वाले वक्त में यही नज़र आ रहा है कि दैट्स नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग विद द ग्रीन पोस्ट क्लाइमेट चेंज एरा and the COPs happening here and there. Do you think they had the understanding that we have to evolve? Well, petrol, we have already reached fuel peak, right, or petrol peak. तो अब जितनी भी petrol economies थी, they have to diversify, including places like Kuwait. And they have to take care of their own growing population. जहाँ पे उन्होंने where they failed essentially, and Saudi में भी है, उन्होंने अपनी जो talent development है उसमें initial years में पैसे invest नहीं किए. So that sort of leads to a problem कि आपके पास वो talent है ही नहीं जो उनकी high skill jobs को fill कर सके. Indigenously कर सके. Essentially. So they have to rely on expats at least for a transitionary period, and that could be very, very long, maybe a couple of generations. I would say 20-25 years, one generation at least. आपको UAE में नजर आना शुरू हो गया कि वहाँ का लोकल टैलेंट सेल्फ सस्टेनेबल हो गया. हाँ, बेहतर है बाकी जगहों से. बहरीन का भी बेहतर है बिकॉज बहरीन वाज द पूरेस्ट ऑफ द पेट्रो इकोनॉमीज, राइट. और उनके पास भी अब इंडिजिनस लोग बहुत अच्छे skills के साथ आ रहे हैं या कदरे बेहतर skills के साथ आ रहे हैं. For places like Saudi and Kuwait, we're still, I would say, 20-25 years. But then again, I'm no expert, right? There are smarter people than I working on this problem. And so how long were you there for? I was there for 2.5 years. And what was next? Then I went back to the US. And that's where my journey in digital began, right? So I started working with a 400-year-old publishing firm, Elsevier, known for publishing the Galileo papers. और उनका 127-year-old at that time was their database, essentially, abstracts का, जिसको digitize किया, right? और फिर उसके ऊपर एक business बनाया जिसको उन्होंने collaboration के लिए, funding के लिए, citation के लिए खोल दिया. The database was called Scopus, and the products that were created were called SciVal. So I was part of the SciVal business for a very short period of time. And that's when I sort of really started getting knee deep into digitization. While I was working at Elsevier, there's another big publishing firm by the name of Condé Nast. वो भी अपनी Condé Nast, where have I heard Cosmopolitan, Golf Digest. I believe they the reason why I know this is because they put Pakistan in one of the top destinations to visit back in 2020, and everybody was sharing that. Yes. So Traveler उनका है, Condé Nast magazine उनका अपना है. Right. It's the 4th tallest building in Times Square. अच्छा. So the Condé Nast. So they're huge. Yeah, it's I think one of the largest magazine publishers. Wow. और उस वक्त publishing houses were thinking about कि यार हम digitize कैसे करें. The only one that had sort of cracked it was New York Times. उन्होंने अपनी subscription शुरू की थी. Nobody was subscribing to it, and everybody wanted to get onto the subscription model. Right. So that was really my first foray into understanding digitization and understanding how traditional businesses work. फिर कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि my mother-in-law got diagnosed with cancer. अच्छा. And at that time, I started looking at opportunities for us to come back to Pakistan for a little bit of time. And I ran into this opportunity at Tamir Bank. Chota sa microfinance bank, was barely just profitable. They had just gotten a chief strategy officer position approved. And I found out about it. So I pursued that opportunity. I was 32 at that time.
And Nadeem, who was the founder of Tamir Bank, he took a chance on a 32-year-old that he didn't know out of New York. And he said, "Aao, mere saath, come and talk to my team, my management team. And if they like you, then I'll think about hiring you." 3 days later, I was on a flight to come and see him. I met the management team. Immediately clicked with a few of the people in the management team, and by 6 o'clock that very same evening, I got a call from Nadeem saying, "I have an offer for you, and you have 30 seconds to decide whether you want to take it or not." I said, "I need to consult with my wife. I don't make any decisions without talking to my wife." They said, "Okay, I'll give you that exception. Call me back when you're ready." We had a quick discussion. I called him back the next day and I said, "I'm taking it." And a month later, I was in Pakistan, lock, stock and barrel. I only came for 3 years, honestly. मेरा ख्याल था कि 3 साल लगाएंगे, auntie would get better, and then we would probably move back. Those 3 years have turned into almost 11 years now. Acha. Yeah. And so, how long did you serve at Easy Paisa or Tamir Bank at the time? Also, I think Easy Paisa नहीं आया था. Easy Paisa आ चुका था. So Easy Paisa उस वक्त Telenor के साथ था, और Tamir was the banking license. Looking at the microfinance and जो ये micro loans and agri loans and all of these things, right? And you were looking at strategy or risk? I initially was looking at strategy. ठीक है. 1.5 साल मैंने strategy पे काम किया, 1.25 साल. और फिर the risk position opened up, and Nadeem called me one day out of the blue, and he's like, "Young man, you're now the chief risk officer." I'm like, "I don't know anything about risk." And he's like, "No, you'll figure it out." Right. But it was a great experience. I got to work with Salim Raza, who was the ex-governor. He was on our board. So getting trained by him was again baptism by fire. बहुत कुछ सीखा. And for 4.5 years when I was at Tamir, we achieved a lot. The team was so great that when I joined, I think the profits were 200 million rupees. By the time I left, our profits were close to 1.3 billion. And that's when Telenor was buying the full stake. Right. तो फिर वहाँ से मैं जब निकला तो मैंने कहा यार पाकिस्तान के मैंने सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ काम कर लिया है. And then the HPL opportunity came knocking. They were building a team for digital. I had a conversation. I had a few conversations. And I ended up getting sold on the vision that they wanted to be, a forward-looking bank. Right. This is back in 2014? 2016. 16. Yeah, 2016 में so I came onto the team. तब उनकी ऐप बन रही थी. बहुत मसले थे, but Abrar, my boss at the time, he was, he had a vision. The bank had a vision. उनके अपने न्यूयॉर्क के मसले अलग चल रहे थे, which they have, resolved effectively. और फिर हमने एक डिजिटल विजन पे काम करना शुरू किया. तो शुरू में 75 साल पुराना बैंक thinking कि जो digitization है, it's just a hobby. But we didn't start with the app. App was just the outcome, right? We started with the processes. We looked at what needed to be fixed on the back end for it to be an effective app. And I believe that's a process that's still ongoing 3 years after I have left. How long were you there for? I was there for about 3.5 years. Acha, so you were there for a while. Yeah. So uske baad, what was the next one? MasterCard. ठीक है. MasterCard though, it was a no-brainer opportunity. When it came, it was an opportunity to work with a world-class payment technology company, an opportunity to grow the market in Pakistan. I took over 6 weeks before COVID lockdown. Right. And for the next 2 years, I worked out of my study. Acha. Like in that time, but that must have been the most exciting time, because that's where the requirement just sort of went through the roof. Yeah. So we grew our market share by 26 points. We went from being in the mid-20s to being in the high 40s in terms of market share. And then we grew the revenue by nearly 2x in the same time. अच्छी बात यह है कि we were able to create this philosophy in MasterCard कि with
by tapping into markets like Pakistan, that's where the growth is going to come from. और ये चीज़ अभी भी both for MasterCard and Visa and other big technology firms, they realize कि there is tremendous potential in Pakistan. उस potential को harness कैसे करना है is the challenge, right? So how do they grow their revenue 5x, 6x while also growing the financial inclusion in this space, while also serving SMEs, while serving freelancers? Those are the challenges that I actually got pulled into solving. So in addition to doing the role in Pakistan for developing the country business, I actually helped build 4 verticals for the region. जहाँ पे उन्होंने SME पे काम किया, उन्होंने फ्रीलांसर्स के लिए काम किया, मैस लाइफर्स, पीपल जो कि 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में पर मंथ, उनके लिए काम किया, और यूथ के लिए काम किया. So they created these 4 verticals specifically for Pakistan and other emerging markets like Egypt and Nigeria, etc. And that now has become part of the repertoire that they take to markets. Pakistan they see as a scale market. अच्छी बात यह है कि a lot of these multinationals are now realigning Pakistan from Asia Pacific to MENA. Right. Asia Pacific में हम 4th या 5वीं most populous market हैं. MENA में हम सबसे बड़ी market हैं. तो all of a sudden सारे products का focus इधर आ जाता है. And that I see that as a win for Pakistan, especially when there is growing interest from multinationals and growing interest from startups in the MENA region. अब आप देखेंगे इजिप्ट से बहुत से स्टार्टअप्स पाकिस्तान आके काम करना शुरू करना चाह रहे हैं. स्विवल आया, दे सॉर्ट ऑफ फॉल्टेड अ लिटिल बिट, बट अब पेमॉब आ रहा है और टेल्डा आ रहा है और बहुत से प्लेयर्स आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि शोकेस तो करते हैं सऊदीया में, यूएई में, लेकिन उनके लिए स्केल मार्केट्स हैं इजिप्ट एंड पाकिस्तान. इंटरेस्टिंग. अच्छा, सो मास्टरकार्ड generally their revenue model is based on transactions, is that correct? Or is it some sort of a subscription model, B2B? How does that work? So they traditionally had a core business, which was the cards business. Right. And they make money on card fees, they make money on transactions. Every time money is switched between accounts, they take a small portion of that. जब आप merchant के पास जाते हैं, पाकिस्तान में तो 2.5% आपसे upfront charge करते हैं ना. That 2.5% is actually charged to the merchant. उस 2.5% के 3 sections हैं. उसमें 3 शेयर्स में स्प्लिट होता है. एक एक्वायरिंग इंटरचेंज है जो कि उनको मिलता है जिनकी मशीन है, जिसके ऊपर कार्ड चल रहा है. ठीक है. एक इशुइंग इंटरचेंज है जो कार्ड वालों को मिलता है, जिसने कार्ड इशू किया हुआ है बैंक ने. ठीक है. और एक आपकी स्कीम की फ़ी है जो कि सेंट्स में होती है. इट रेंजेस बिटवीन लाइक 1 cent टू 14, 15, 20 cents. वो फिक्स्ड फ़ी होती है, इट्स नॉट अ परसेंटेज. और ये सब MDR का हिस्सा होती है. MDR is the merchant discount rate. और वो चार्ज होती है, उससे पैसे बनाते हैं. So that's the core business. So जो फिक्स्ड रेट है वो जा रहा है मास्टरकार्ड को. Yeah. And so bucket size then makes an impact on the bottom line of the machine and the acquiring bank and the issuing bank. हाँ, क्योंकि इनको तो फ्लैट मिल रहा है. Yeah. इनको परसेंटेज मिल रही है. नहीं, मास्टरकार्ड को फ्लैट मिल रहा है. बट मास्टरकार्ड को इससे फ़र्क पड़ता है कि वो $100 है या $1000 है या $10,000 है, या बस वो फिर वो फ्लैट है तो फ्लैट है. सो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे वो कम होता है थोड़ा. एंड द डायनामिक्स वेरी फ्रॉम मार्केट टू मार्केट. Some of those things I can't talk about. Understandably. But partly because I don't even know. Right. So my understanding would be कि वो होता है ना कि for a minimum buy-in X is either like a 5 cents or a percentage, whichever is higher वाली बात जो होती है. So it's a fixed amount that is predetermined. Okay. Right. So वो जो भी जब आप किसी मार्केट के लिए इंटरचेंज डिटर्मिन करते हैं तब आप वो फिक्स्ड अमाउंट डिटर्मिन कर लेते हैं. एंड इट वेरीज फ्रॉम मार्केट टू मार्केट. पाकिस्तान के लिए उन्होंने प्रेफरेंशियल रेट्स दिए हुए हैं. एंड व्हाट्स द यूटिलिटी ऑफ अ कंपनी लाइक मास्टरकार्ड इन द इकोसिस्टम? सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि यार ठीक है, मेरे पास HBL है, वो बैंक है, वो जाके वेंडर से बात कर रहा है, कह रहा है कि यार ठीक है तो किसी ने ख़रीदना. सो अगर मैं हिस्टोरिकली जाऊँ तो बैंक है, बैंक के पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक जाता है और जाके कहता है कि यार I'm going to talk to a bunch of different vendors, and whenever they need the money, either I can verify it कि yes, this guy is good, so I'll give you the money, or credit के ऊपर है कि मैं उस पर I loan him the money right now and pay on his behalf. Yeah.
is the utility of MasterCard the technology where the verification is on point in the most simplest way? So not just MasterCard, right? Pakistan में भी एक company है OneLink के नाम से, which does something similar. And OneLink के origins are exactly how MasterCard started. MasterCard started as a switch. The payment schemes work on what is known as a 4-party model generally. और वो ये है कि आप एक पार्टी हैं, आप कंज्यूमर हैं, मैं एक पार्टी हूँ, मैं मर्चेंट हूँ, मेरा बैंक एक पार्टी है और आपका बैंक एक पार्टी है. अगर मेरा और आपका बैंक एक है तो फिर भी वो 2 separate parties हैं because they're essentially looking at 2 separate businesses, right? So switching that money from one account to another account, if it is in 2 different banks, is known as an off-us transaction. Or MasterCard and other schemes traditionally provide the rails to switch that money, right? And that's what they charge money for. For companies like MasterCard and international payment companies and Visa and others, उन्होंने किया ये है कि उन्होंने अपना repertoire बढ़ा लिया है. They're not just switching companies anymore. Okay. They are technology companies. So they're providing fraud prevention, risk analysis. They're providing data analytics. They're providing cyber security और services. कि अगर आपने अपना business grow करना है तो आपको advisory service भी provide करते हैं. So उन्होंने अपना revenue model diversify कर लिया है. I'll give you an example of Pakistan. Pakistan, when I took over as country head, was primarily a payments-driven business, right? Switch business. Over the couple of years that I was there, we actually diversified it, largely because of the regional push, to make it into a core and services business. Because उन्होंने दुनिया में global benchmarks बना दिए कि इतना revenue services से आना ही आना है. Right. यही बात is true for Visa, and I hope that this is also true for the local scheme as well, because they need to up their game in the long term and become a payments technology company in the process too. Do you think the local scheme has the capability, vision, or incentivization for that? They may have the vision. They have to understand they cannot do it in isolation. They will have to partner. They'll have to partner with either international players or they'll have to partner with other local players to enhance their capabilities. अब आगे जो दुनिया है वो है open banking की दुनिया. So मेरा जो if I were to be part of that business, I would tell them to become an open banking company, to become an API gateway, जहाँ पे banks अपने API host करते हैं and provide banking as a service. Right. और वो that is essentially at the heart of where financial services is going now, right? It's going to be about collaboration. It's not going to be about operating in isolation. Okay, if I were to ask you, for example, how do you see MasterCard or Visa in the future of banking, considering कि जब तक वो switch companies थी, so I understand technology hadn't progressed as much, but in the age of digital, अगर मैं back end की भी बात करूँ तो especially with the RAST rails coming in, and I'm not talking about cross-border payments. That's a different ball game altogether. There's conversion there, and उसकी ज़ाहिर है वो अभी भी थोड़ा सा ज़रा इतना agile नहीं है. बट जब हम लोकल बात करते हैं, करेंसी इधर से उधर हॉप अराउंड कर रही है, तो इट्स रियली अ मैटर ऑफ बिल्डिंग द राइट एंड द मोस्ट रोबस्ट टेक्नोलॉजी that almost, to be very honest, in a one way or the other, every fintech company is building right now, right? They have to make sure that the ones and zeros aren't misplaced, right? And they're verified and they're cross-checked. What's the utility then of a third-party legacy company? सवाल का मकसद थोड़ा सा ये है, तो I'm going to put my tinfoil cryptocurrency hat and really be the devil's advocate and say कि यार centralized exchanges or verifiers of money, they're ठीक है, वो अभी जितना भी अपने आप को pivot कर लें, ये कर लें, वो कर लें, but inherently they're going to die out. What are your thoughts on that? So we are going through what I would call the disintermediation super cycle. Okay. Right? Where all incumbents are at risk of losing their primary source of income and their primary source of revenue. What do you mean by that? That means that for a company like MasterCard or Visa or any other payments player,
rails are changing. लोकल रेल्स, बहुत से रियल टाइम पेमेंट्स आ रहे हैं. रास्त की आपने बात की, दुनिया जहान में रियल टाइम पेमेंट्स आ रहे हैं. इन कंपनीज ने क्या किया? दे गॉट अहेड ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और बाइंग रेल्स कंपनीज. So MasterCard, for example, I know MasterCard. I'm not here to speak on behalf of MasterCard, so I'll talk about them as an example. उन्होंने एक कंपनी खरीदी Vocalink के नाम से, which does exactly that. UK में आप फास्ट पेमेंट्स देख लें, ऑयस्टर कार्ड आपने शायद इस्तेमाल किया अगर आप गए हो UK, तो वो फास्ट पेमेंट्स के ऊपर बेस्ड है. और वो उन्होंने उन डिसइंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है. ये for MasterCard at least started 10 years ago. Visa is also on a path. I'm sure other technology companies, payment technology companies are also on the same path. So उन्होंने इस disintermediation को anticipate किया और उन्होंने उसके अंदर आना शुरू कर दिया, including crypto now, right? So Visa and MasterCard were one of the first ones to mainstream crypto payments through their cards. Crypto-backed cards हैं. I think Visa is partnered with Binance. MasterCard has just enabled NFT purchasing through crypto on their network. So because they have a war chest, they are going and investing into these technologies. You're absolutely right. Decentralization of financial services is happening. Right. So traditional roles are changing. Crypto के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो वो आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं. जिस मुल्क ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू की है, they have started the process of disintermediating banks itself and the exchange of currency on the whole. I don't want to speak on behalf of the regulator. I want to be very clear about that. I'm not a representative of the central bank. But जहाँ तक मुझे पता है, the central bank is also, our central bank is also studying it and understanding कि उसके अंदर पाकिस्तान में उसकी application क्या हो सकती है. Right? But आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये जब डिसइंटरमीडिएशन होगी तो उसके अंदर इनकम्बेंट्स का रोल चेंज होगा और डिमिनिश होता जाएगा. उनके रेवेन्यू मॉडल्स भी इसी हिसाब से चेंज होंगे. इसीलिए जो मैंने पहले बात की, उन्होंने उन बड़ी कंपनीज ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है. हमारे बैंक्स ने शायद वो जर्नी अभी नहीं शुरू की. हमारे इनकम्बेंट्स ने लाइक टेलकोज ने भी वो जर्नी शायद नहीं शुरू की. अच्छा, अगर मैं आपने CBDs का तस्करा किया, बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, बिकॉज मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि क्रिप्टो करेंसी एज अ प्रोडक्ट तो अभी वो बूम बस्ट साइकिल में चल रही है, वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट बट देन यू रियली कम आउट एंड ट्राई इट एंड फिर वो अभी तो आजकल तो ब्लड बात चल ही रहा है, बट ये चलता ही रहता है. इट्स लाइक pets.com. Sure, great idea, you can buy pets, but can it really work in a real world environment? And so a lot of that's happening. But really, it's the technology that excites me. And so when you talk about the technology, people see the excitement in the technology in the decentralization. Sure, maybe 100 years from now or maybe faster. I'm not trying to be cynical. But the fact is कि एक निज़ाम होता है सोसाइटी का, और उस निज़ाम के अंदर बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं 100% ट्रूली डिसेंट्रलाइजेशन के. बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वो हैं जो कि आपको अभी नहीं बताई जा रही ना, आपको तो सिर्फ प्यार मोहब्बत बेचा जा रहा है. तो वो जब नेगेटिव्स आती हैं तो फिर आपको उसके दरमियान का रास्ता निकालना पड़ता है. एंड देयरफॉर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, अगर मैं CBDC को लेकर आऊँ कि यार ठीक है, अगेन वही वाली बात है, वो एक लेगेसी फॉर्म ऑफ करेंसी का वो था सेंट्रल बैंक का, और लोग कहते हैं जी वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट. But then why can't the central bank sort of redesign itself and bring you all of the sort of bells and whistles of the digital currency, but with their own control? उसको मद्देनज़र रखते हुए हिस्टोरिकली एक बात ये आती है कि सेंट्रल बैंक इज़ गोइंग टू print the currency or is the guarantor of currency. But they always kept themselves out of the consumer markets of currency, right? So they had these sort of banks जो कि उस currency को उठाते थे, उसके ऊपर products build करते थे और build करके वो consumer तक जाते थे, and you had that happening. Now with CBDC, when the central bank has all of that control themselves, do they even need banks to do any of that? Do they need
कि यार अल्फला जो है वो लैया में, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में है, मैं कराची में हेड ऑफिस करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो लैया की मैनेजमेंट जो है ना वो अल्फला कर ले। डू दे नीड दैट व्हेन लैया का बंदा भी उसी ऐप पे है जिस ऐप पे कराची का बनता है? देयर इज नो डिफरेंस और नो डिस्टेंस, सो देयर इज नो एसेंशियली रिक्वायरमेंट फॉर ए प्राइवेट एंटिटी टू प्रोवाइड अ सर्विस टू कंज्यूमर को। तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इट्स अ सर्विस टू द सेंट्रल बैंक ना, कि यार पैसे उठाओ और पैसों की सर्विसेज जाके कंज्यूमर तक पहुंच जाओ, बट अब तो वो डायरेक्ट डिजिटल पे हो सकती है। सो क्या CBDC से आने के बाद आपको लगता है कि आज से 30-40 साल 50 साल बाद हमें बैंक्स का रोल बड़ा मुख्तलिफ दिखना शुरू हो जाए, बिकॉज उसकी शायद रिक्वायरमेंट ना हो, और शायद बैंक्स जो हैं वो छोटी छोटी एपलेट्स रह जाएँ जो कि एसेंशली CBDC का बड़ा मगरमच्छ इंजन के ऊपर जो है वो छोटी सी एक एपलेट है जो कि श्योर कुछ प्रोवाइड कर रही है, बट बेसिकली अ लॉट ऑफ द करंट role has been sort of eaten by the central bank or the digital central bank. Yeah. Look, to be honest, I'm not qualified to answer that question, but I'd venture a guess. क्या असर है यहाँ? क्योंकि I feel like right now nobody is qualified. It's more like a hunch based on your experience. So I would akin this to healthcare, right? ये ऐसे ही है कि हम कहें कि चूँकि अब रेडियोलॉजी कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर बना सकती हैं जो कि एक्सरे रीड कर लें, तो शायद दुनिया में रेडियोलॉजी लैब्स या हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है. You can probably in 10 years time your phone will be capable of taking an x-ray probably, right? Hopefully. But you would still need the infrastructure to solutionize that technology. CBDC and the technology that backs CBDC is just the fundamental rails. It's like Rast as well. Rast is not the end solution, right? Rast is not CBDC, let me be very clear. Rast is just the rails. उसके ऊपर product बनाना, उसके ऊपर solution बनाना, वो fintech का काम है, वो बैंक का काम है, वो EMI का काम है, वो किसी भी FI का काम है. और वो आपको चाहिए होगा because आपके पास customer की जो कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग है ना, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग वो फ्रंट एंड प्लेयर्स के पास है. सो मेरा माई कंटेंशन इज दैट बैंक्स, फिनटेक्स, EMIs, non-banking FIs, they will all essentially become front end players, and they will have to continue to evolve how they engage the customer and how they service the customer and eventually delight the customer in their financial services usage. That is going to determine whether they survive or thrive or perish. Central bank तो आपको rails provide करनी है. आज आप ब्लॉकचेन ले, ब्लॉकचेन 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है. ठीक है, अगर मैं इसको ये तो आपने कहा ना, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मलबा डाल दिया, अगर मैं चाइनीज़ मॉडल पे जाऊँ और मैं कहता हूँ कि यार आपका एक स्कोर मेंटेन करता हूँ मैं, उसके अंदर मैं फीड कर रहा हूँ आपका ट्रैफिक की वायलेशंस, उसके अंदर मैं फीड कर रहा हूँ आपका a lot of the data that the government has, by the way, much better and much smoother data from car ownership, travel to other countries, so on and so forth, much of that data. And I begin to maintain a particular credit score. वो क्या कहलाता है जो चाइना का sort of dystopian वो है, I don't know what the word for it is, but वो basically एक sort of आपका let's call it wellness score, right? क्या? Yeah. And through that wellness score, very Black Mirror-esque. Very Black Mirror-esque. So based on that, I mean, if the central bank is giving, if they have a rate, and the bank adds 2% of that rate, what's the utility of bank adding 2% when that rate can directly go to the consumer? Yeah, I don't expect the central bank to go into consumer servicing directly. You don't? Yeah, and I expect the central bank to give discounts on that rate so that the consumer can be serviced by front-end customers. Okay. अभी भी आप देखें जैसे in the current day, there are some services that banks provide that service the end user. ECIB as an example. आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं या कार लोन लेने जाते हैं या कोई भी लोन लेने जाते हैं, आपका ECIB रन होता है. Right. वो सर्विस प्रोवाइड तो सेंट्रल बैंक करता है, लेकिन उसको अप्लाई बैंक करता है. ठीक है. मेरे ख्याल में ये फिलॉसफी चेंज नहीं होगी, राइट? थोड़ी बहुत डिसइंटरमीडिएशन होगी जहाँ पे बैंक टू बैंक रिलेशनशिप है, जहाँ पे बैंक की ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स की डिटर्मिनेशन है, जहाँ पे बैंक की ओवरनाइट लेंडिंग की अरेंजमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ, शायद वो ख़त्म हो जाए. एंड योर सेंट्रल बैंक दैन बिकम्स थ्रू द CBDC
the primary lender to banks. Right. उस पैसे को आगे कैसे deploy करना है would still remain with the the FIs, banks, fintechs, whoever. ठीक है. The front end players. एक और सवाल, बैंक साइकिल्स जो अभी आपके मंडे टू फ्राइडे वाले हैं और जो 9 to 5 वाले हैं, do you think that's going to change with digitization? अभी मतलब you see the cryptocurrency market, it's always moving, right? But the stock market and banks के वो saara kuch jo hai it's always 9 to 5, and it doesn't make a lot of sense to me because theoretically you don't need a lot of human intervention anymore. Everything is, I mean, my entire company's finances are dealt with a corporate account with Standard Chartered, right? And we've now become digital. We are a digital company, we're putting digital content online, and so we work with other people जिसके लिए हम services and products के लिए भी, to be very honest, कभी बार ऐसे होता है. I remember हमारा इमरान खान साहब के साथ podcast थी, and it was the third day of Eid, and on the first day of Eid, अब podcast थी, जानी भी थी, and we needed these new stands, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना. So पुराने वाले जो थे वो थोड़ा इफ़ी से थे. So I called my vendor and I was like, sir, खान साहब से मेरी podcast है, आप figure it out and get me the stands. And he was like, sure. उन्होंने वो गए, जाके उन्होंने अपना सेटअप कर दिया. उन्होंने TCS को कॉल की, TCS ने कहा कोई इशू नहीं थी, हम ईद पे काम करें. मतलब so everybody is working all throughout. And then it was time for me to pay. And my bank said कि सर अभी तो ये 3 दिन तो अभी ईद की हॉलीडेज हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सी बैंक हॉलीडे, तो पता नहीं वेंसडे को जाके मिलेगा. और वो भी बोला नहीं उसने, क्योंकि उसका कॉल सेंटर भी छुट्टी पे था. वो तो मुझे ऑनलाइन गए तो उस पर वो स्टेटमेंट आ गया. एंड इट मेड नो सेंस टू मी. We are closed for Eid. Why? Like, is someone sitting there and saying, okay, this transaction, okay, sir, you are okay. It doesn't make any sense, right? You have the rails, you have the verification, I have the money in the bank. Check with me, take my money out, throw it to whoever you have to throw it to, and usko figure out kar lo. So is it a Pakistan problem? Is it a global problem? And do you think that that's going to be solved where I can have I can have a banking experience truly have a banking experience 24/7 without having to worry about कि यार वो branch, like again Standard Chartered कहता है जी we're a true digital bank, आपको branch जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका digital जो है वो 5 बजे के बाद नहीं चलेगा. सही. I don't think it's a Pakistan only problem. Right. ये जहाँ पे अभी चीज़ें evolve हो रही हैं, maybe this is a problem. This is a problem at least the US solved for maybe 30 years ago. ये मुझे याद है 30 साल पहले भी, 20 साल पहले. In 2003 I was already on Bank of America's app. App नहीं थी उस वक्त, web service थी. तो मेरे पास Nokia communicator होता था. I would go into the browser and I would type bankofamerica.com, and on my mobile phone I would open a full desktop app and I would do my transactions. उस वक्त 3 दिन लगते थे, अब वो instant है. In some cases Pakistan is actually ahead of the market. अच्छा. Because as a consumer, अगर आज आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, अगर छोटी अमाउंट है, आपके stands they look very fancy and expensive, so the amount must have been bigger than what is allowed in the IBFT. Right. IBFT तो आप instantly करते हैं, 24/7 करते हैं, और in most cases आप free of cost करते हैं. Right. RAS के साथ it's going to be free of cost up to a certain amount. Right. So I was actually amazed when I came to Pakistan in 2012 that I could instantly transfer money to someone else. That's not possible elsewhere? America mein this it has become possible in the last few years, but it wasn't possible in the early part of the last decade. तब भी 3 दिन लगते थे, unless you were a bank sending money to a Bank of America customer or to a customer in the same bank. Achha. So in some ways Pakistani financial services is on the bleeding edge, but in most ways I would say that we have to catch up. और उसकी वजह ये है कि हम as a society customer centric नहीं है. हम user experience को मद्देनज़र रख के कुछ नहीं बनाते. हम in isolation बनाते हैं. Banking products की अगर हम बात कर लें, most banking products are made in air conditioned rooms, people wearing suit and tie. वो कहते हैं यार ये अच्छी लगेगी, और फिर वो जाके कस्टमर ढूंढते हैं. Right? और फिर वो कस्टमर को कहते हैं कि तू इवॉल्व हो जा मेरी प्रोडक्ट के लिए, मैं तेरे लिए प्रोडक्ट नहीं बनाऊँ. Exactly. Whereas most fintechs are taking a different approach, where they're going and understanding what the customer pain points are. Right. And in my opinion,
and we were having this discussion earlier as well. In my opinion, हमें fintechs को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको हर फन मौला बनना है. They need to be a niche player. Right. They need to come and fill in the gaps जहाँ पे banking नहीं चलती. Right. जहाँ पे banking fail हो जाती है और banking mindset fail हो जाता है. Right. And उसके लिए उनको collaborate करना ज़रूरी है. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि they come out of this competing mindset and they look at how they can complement the banks and turn that complementing each other into a collaboration. होगा ये कि अभी आप ये देखेंगे कि फिनटेक्स आएंगे और वो कहेंगे यार बैंकिंग की दुनिया में बैंक्स को ये नहीं करना आता, आई एम गोना ईट देयर लंच. Whereas when you start thinking as a competitor, you are also putting yourself in a potentially losing position. Right. So you either win or you capitulate. But when you start to think of yourself as a collaborator, you go and find the cracks that you need to help fill to provide a smoother experience. हमें एज अ सोसाइटी कंज्यूमर सेंट्रिक बनना पड़ेगा. अगर आप अपने बैंक की बात करें तो उनको ये सोचना पड़ेगा यार बिजनेसेस 24/7 चलते हैं. TCS भी 24/7 चलता है, इम्तियाज़ भी 24/7 चलता है, मुज़म्मिल्स पॉडकास्ट भी 24/7 चलती है. एंड द नीड्स दैट नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर दीज स्मॉल बिजनेसेस एंड बिग बिजनेसेस, दे आर नॉट टाइम बाउंड. 9 to 5 नहीं हो सकते. राइट. I have been digital banking in Pakistan for 4 or 5 years now. I pay most of my bills at 2 or 3 in the morning, right? Or first thing when I wake up. I don't wait for a branch to open up. Why should a business owner have to wait for weekdays and 9 to 5 for the bank to service them? It's easy to create that interface and make it digital, available on your phone or your desktop, just like it has been done for consumers. But they're not thinking in that respect. मतलब वो ये ना कि देखें एक कंफ्यूजिंग सी बात है. अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड, IBFT, कंज्यूमर वाले पे सब कुछ अवेलेबल है. बिजनेस अकाउंट के ऊपर बिजनेस ने भी बिजली का बिल भी देना है, बिजनेस ने यूटिलिटीज़ भी पे करना है, उनके लिए अवेलेबल नहीं है. वो बेवकूफ़ों की तरह चेकबुक निकालें, फिर वो जाएँ बैंक से जाए कैश निकालें, फिर मतलब it makes no sense. Is there nobody sitting there and thinking that there are gaps here where you can begin to digitize these areas, and nobody is unfortunately trying to do that. Some Do you people think that's a regulatory problem in some cases also? ये बात मैं आपको बता दूं कि आपका रेगुलेटर एक बहुत प्रोग्रेसिव रेगुलेटर है. वो शायद टाइम लेते हैं चीज़ को समझने में, लेकिन once they are convinced that this is the right thing to do, they push banks for it. Take an example of Rast. Rast is the right thing to do for this economy. They're pushing banks. Some banks are responding, most aren't. वो बस मैक्सिमम ये कि पुश नोटिफिकेशन डाल दिया and move on. And banks tend to hide behind this जो उन्होंने एक बुगी मैन बनाया हुआ ना सेंट्रल बैंक में. Banks tend to hide behind this. वो कहते हैं यार हमें रेगुलेशन नहीं इजाज़त देती. हालांकि दुनिया जहान के रेगुलेटर और जहाँ तक मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है सेंट्रल बैंक के साथ, अगर आप उनके पास एक नया आइडिया लेके जाएं और आप कहें मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, वो आपको उसकी एक लिमिटेड इजाज़त देंगे. कहीं करो, आप इसके रिजल्ट्स लेके आओ, हमें समझाओ कि इसको आगे किया जा सकता है. वो एफर्ट नहीं डालना चाह रहे वो. हाँ. सवाल है, आपने पाकिस्तान की 2 जो लेगेसी फिनटेक्स हैं, फिनटेक्स की भी लेगेसी एक आ चुकी है, 2 लेगेसी फिनटेक्स के साथ आपने एसेंशियली काम किया हुआ है. मैं जब इनको देखता हूँ ना, पाकिस्तान ने बड़ा इट वाज डाउटेड कि यार दीज आर गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज. दिमाग में क्या था, वो ये था कि यार ब्रिक एंड मोर्टर है, ब्रिक एंड मोर्टर वालों की कॉस्ट ओवररन इतना ज़्यादा है कि वो एक अकाउंट खोलते हुए द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज सो हाई दैट दे आर नेवर गोइंग टू सर्विस योर मैसेज, राइट. सो तो ईजी पैसा आया और उसने आके दुनिया बदल दी कि यार हर चलता फिरता जो है वो OTC और इसके थ्रू पैसा मूव कर सकता है. एट द वेरी लीस्ट बेसिक यूज़ केस है, गाँव भिजवाना है तो मैं पैसा भिजवा सकता हूँ. एंड देन उसी में था कि यही चीज़ कन्वर्ट होगी ऐप्स में, और इवेंचुअली जब ऐप्स में कन्वर्ट होगी तो पाकिस्तान का हर चलता फिरता बंदा जो है जी वो एक थियोरेटिकली बैंक अकाउंट रख सकता होगा. अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम वीव सीन कि उतनी रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ नहीं आ सकी. अच्छा, आप तो ज़ाहिर है अंदर से आए हैं तो आपका एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होगा. मैं आपको एक आउटसाइडर के एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं कि मुझे क्या लगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लेगेसी फिनटेक्स टेक ओवर कर ली प्राइमरीली बाय टेलकोज. अच्छा, टेलकोज को जब मैं देखता हूँ, देर नथिंग मोर देन सेल्यूलर मार्केटिंग कंपनीज. खंबे वो एरिक्सन लगा रहे हैं,
जो उसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स चल रही हैं वो IBM कर रहा है, डेटा के बॉक्सेस जो हैं वो टेराडाटा ने दिए हुए हैं। उनका टोटल स्ट्रेंथ जो आती है वो ब्रांड मैनेजर से आती है और मार्केटिंग टीम से आती है। साफ सी बात है, वो पैसा लगाते हैं, वो कर ये रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, वी हैव द मसल एंड द मनी एंड वी आर गोइंग टू गेट एवरीबडी टू डू whatever their job is, and then we're going to milk it and we're going to make lots of money. Fintech is not that industry. Or digital is not that industry. Not at all. Right? That digital is an ever evolving, extremely agile, super efficient, super fast, any word synonymous with that as well. And so मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा इजी पैसा में एक अकाउंट बना 2013 में। मैंने एक टेलीनॉर का नंबर निकाला, फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल दैट जैज सारा कुछ पूरा करने के बाद 2014 में इन्होंने कहा जी मोबाइल अकाउंट्स आ गए, SMS भेजें, मोबाइल अकाउंट खुल जाएगा। मैंने भेज दिया SMS, somehow between टेलीनॉर एंड इजी पैसा माई डेटा डिडंट गेट ट्रांसफर्ड। 2014 से लेकर 2019 तक मैं अपना सर खुजा रहा था, क्योंकि एवरी टाइम आई वुड टॉक अबाउट, दरमियान में ऐप बन गई, सारा कुछ हो गया। मैं जब भी उस पर जाता था वो कहते थे जी आपका तो डेटा ही नहीं, फिंगरप्रिंट तो बहुत दूर की बात है, वी डोंट इवन नो कि इस नंबर पे जो अकाउंट खुला हुआ है उसका नाम क्या है। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है। चाहे इसी मीन वाइल मेरे ब्रदर इन लॉ गॉट इनटू दैट कंपनी, मैंने अंदर से भी करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हमने टिकट खोल लिया, ऐसा कोई यार नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब मेरा बैकग्राउंड डेटा एनालिटिक्स का है, एंड इंटरेस्टिंग बात ये, मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट पर टेलीनॉर में काम भी किया हुआ है एज अ कंसल्टेंट। मेरे लिए इट वॉज माइंड बॉगलिंग कि यार यू एज अ कंपनी, लाइक हाउ कैन यू नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम unless you don't have full control over it, right? Unless you, or if you don't want to, either you don't want to, or some engineer came in, built a closed up engine for you and said कि यार इन इंजनों कभी खोली ना और बस चलाता नहीं। और इंजन अगर ओवरहीट हो गया तो अब आप सर को जा रहे हो कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं इंजन करना क्या था, वो खोल के पानी डाल देना था उसके अंदर। तो सो जो लेगेसी फिनटेक्स थी बाय एंड लार्ज, उनका तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि चाहे वो चाहती हों या नहीं चाहती हों, उनका DNA ही नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। सो आई स्टार्टेड पिनिंग अ लॉट ऑफ माई होप्स इन दी सॉर्ट ऑफ न्यू एज कंपनीज जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड थी एंड वर बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज, एंड सेइंग कि मतलब प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट पे काम है। सो अब सादा पे, नया पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। The unfortunate bit has been two things. First, के इनके पास most of these obviously do not have the muscle to get a banking license, and so the wallet size is so small कि it's just literally वो यही है, again वो wallet की तरह ही है कि it's one thing that you can have, but it's not going to be digital payments as a lifestyle, right? So if I go to SadaPay, the limits for most of the people, मैं तो चलो बल्कि आई थिंक सादा पे के पास तो ये भी नहीं है कि मैं बढ़ा दूँ, तो वो लिमिट्स इतनी छोटी और इरेलेवेंट हैं कि मैं तो दूर की बात है, मेरे जो हेल्पिंग स्टाफ है वो भी एक्सीड कर जाएगा उसको बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो आइदर ही हैज़ अ रेंज ऑफ 5 डिफरेंट ऐप्स जिसमें वो इधर से भी कर रहा है फिर उधर से भी कर, विच इज़ एन एक्सक्रूशिएटिंग स्टूपिड एक्सपीरियंस, डजंट मेक एनी सेंस। एंड सो यूर स्टक इन अ चिकन एंड एग वेयर द रेगुलेटर इज सेइंग कि यार ठीक है हम तो एक एक्स अमाउंट ऑफ लाइसेंसेस देंगे, लाइसेंस खुलता नहीं है तो वो बड़ा मगरमच्छ जाके खरीद के उसको होल्ड करता है और उस लाइसेंस का बेड़ा गर्क कर रहा है। सच्ची बात है। और जो नया प्लेयर है वो डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू गो फॉर वो। अगेन प्रॉब्ली मैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, बट द क्वेश्चन हियर इज हाउ डू वी टैप इनटू द मैसेस, हाउ डू वी इंश्योर कि ठेले वाला भी QR लेगा, मैं अपने ड्राइवर को या अपने कुक को जो है वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करूँगा, मुझे कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी आगे जो अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो ये नहीं कर रहा कि यार अच्छा मुजम्मिल भाई ने तो मुझे उठा के ये दे दिया, बट अब मैं पहली फुर्सत में जाऊँगा बैंक से वो पैसा निकालूंगा, उसको मैं पैसा लूज़ भी करूँगा, पता नहीं 100, 200, 300 रुपये, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा है, और उस कैश के ऊपर मैं अपने इकोनॉमी में लोकल चलाऊँ। Right? It has to be a fluent ecosystem where everybody can move the money and the cost of movement is minimized. How do we go there? Because the fact is I've been very hopeful but more and more hopeless recently because कोई realistic उसका outcome solution नज़र नहीं आ रहा मुझे। So I think इसको let's peel this onion a little bit, right? सबसे पहले तो you're absolutely right. Telcos
will have a very hard time getting into the financial services space, truly a financial services space. Abhi jo main Pakistan mein dekhta hu, I was recently involved with one. I was involved with one a long time ago. I've seen the space evolve from an SMS to an app, but the mindset has not changed. The mindset still is कि यार अपना जो हमने monthly active user का number है ना, उसको कैसे दिखाना है. चाहे आप उसके लिए बिला वजह का पैसा फेंकें और monthly active user लेके आएँ, somehow that promise that you have made of scale you have to show. Whereas financial services के अंदर engagement matters more than being a monthly active user, right? For you to be able to pay all of your bills and for you to be able to have all of your financial needs met in a friction-free manner is what makes a financial services successful. टेल्को माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है. ब्रेट किंग एक बड़ी मज़े की बात करता है. वो कहता है यार जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं ना, आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच लेते हैं. आप यू ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन टू इट्स फंडामेंटल्स एंड देन यू एड्रेस द फंडामेंटल्स दैट आर कॉजिंग दैट प्रॉब्लम टू एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. जब टेल्कोज इस बिजनेस में आए तो दैट वाज अ मी टू थिंग. दे जस्ट वांटेड टू बी इन इट बिकॉज उन्होंने देखा है जी सफारी कॉम कर रहा है एम-पैसा, तो कौन सी ऐसी गिदर सिंह होगी जो करेंगे, हम भी कर लेंगे. वेयर एज सफारी कॉम एक्चुअली बिल्ट इट फर्स्ट प्रिंसिपल्स, दे बिल्ट इट फ्रॉम द फंडामेंटल्स अप. और उन्होंने कहा, उन्होंने कैश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सर्विस बनाई जहाँ पे लोग एयर टाइम एक दूसरे को भेज सकते थे. हमने पाकिस्तान में रेगुलेशन डज नॉट अलाउ यू टू सेंड एयर टाइम, सो यू एक्चुअली सेंड मनी, राइट. हमने वही प्रिंसिपल लिया और हमने कहा यार ये मनी पे अप्लाई कर देते हैं. डजंट वर्क दैट वे. वेयर एज डेवलपिंग द इकोसिस्टम रिक्वायर्स दैट यू गेट all parties to be on that fundamental system. वो उन्होंने नहीं किया. उन्होंने अपने कस्टमर को समझा ही नहीं. उन्होंने कहा यार जो कार्ड खरीदता है ना वो अकाउंट भी खोल लेगा. In most cases what's happening is when you go to buy a SIM, your mobile account gets opened up and you don't even know, right? आपको तो आपका केस दूसरा था, उन्होंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लूज कर दी. देयर आर पीपल उनके मोबाइल अकाउंट खुले हुए हैं, जब वो अपना मोबाइल अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उनको पता चला वो ऑलरेडी खुला हुआ है बिकॉज somebody had to meet a target because they get a commission on it. अब हो ये रहा है कि telcos are subsidizing their telco business by paying their franchisees commissions for the financial services business. तो उन्होंने फ्रेंचाइजी को ये इंसेंटिवाइज किया गया यार तुमने जो भी करना है ना, नंबर्स लेके आओ and we'll pay you commission on the numbers. As much as 30% of a franchisee's commission comes from the financial services business, whereas financial services को कोई इंसेंटिव नहीं है उन लोगों को पे करने का. आपकी जो प्रॉब्लम आगे जाके होगी वो ये है कि इन फिनटेक्स ने जो दो हमारी बड़ी हैं उन्होंने कैश इन फनल अभी तक रिजॉल्व नहीं किया. डिजिटल बिजनेस चलाने के लिए डिजिटल कैश होना चाहिए ना. इफ समबडी इज स्टिल टेकिंग मनी आउट ऑफ योर वॉलेट टू बाय ग्रोसरीज और बाय अदर थिंग्स, then you're not a digital business. You are just a hoarder of a custodian of their money for a very short period of time. Cash and funnel resolve करने के लिए इनको एक commission model change करना पड़ेगा. I keep having these discussions in Tanzania and Ghana, Cambodia, Colombia. There are models where the central bank actually subsidized the cash and commission, and cash out पे कोई commission नहीं है. So create that funnel that gets you to digitize cash, and then get merchants where people are buying things to start to accept digital cash. जब आपकी merchant payments रास्त पे होंगी, जब merchant free payments ले सकेगा, that is going to solve a big problem, right? But now these telco-owned fintechs have become too big, so big that they've become too big to fail. So अब what they do is they dangle this sword over the central bank's head or the financial services industry's head by saying कि यार अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम एजेंट्स नहीं बढ़ाएंगे, या अगर आप हमें ये मरात नहीं देंगे तो हम ये नहीं करेंगे. And that is muddying the waters quite a bit. I have very little hope. Having seen what I saw in both the telcos, I have very little hope that unless they change their thinking and unless they change the way they approach their business by truly being a financial service business, by understanding you as their customer, by understanding me as their customer and the 220 million Pakistanis as their customer, it is only then that they're able to build a business that's first principles,
that's based on first principles. अभी वो thinking नहीं है. Do you think the new players are going to be able to do that? Do you have any hopes from NeaPay or SadaPay or a lot of these new folks? I would like to see NeaPay and SadaPay take their rightful position as a digital bank in the coming years. I know Brandon really well. I know Danish really well. I consider them true visionaries and torchbearers of digital financial services. वो और जो आपके 5 digital bank licenses आएंगे इंशाल्लाह, that stands to be a game changer for SMEs, for consumers. क्योंकि SMEs को अभी तो कोई भी नहीं पूछता. They are the stepchild of our economy. हम उनको इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमारा डेटा, उनका डेटा नहीं है, और हम उनको सर्विस करना ही नहीं चाहते because it takes a lot of time to understand the different verticals and SMEs. So I expect these digital banks, including the NeaPays and SadaPays of the world, to really get into the hearts and minds of their customers and understand कि उनको चाहिए क्या, what do they want and what do they need. You spoke about data, कि उनके पास data नहीं है. As a consumer, when I look at this thing, तो मैं तो पत्थर उठाता हूँ तो मुझे डेटा जनरेट होता नज़र आ रहा है आजकल, राइट. एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट वेरी सॉर्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न बिजनेसेस के. मैं जाके कंज्यूमर बोले यार आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपका डेटा तो ज़ाहिर है पड़ा हुआ है, बट वो जो करियाने की दुकान चला रहा है, बट देन आई सी के यार रिटेलर बना रहा है उसका डेटा, बाज़ार बना रहा है उसका डेटा. एंड सो समवेयर और द अदर देयर इज़ वन टच पॉइंट और अनदर जहाँ पर डेटा जनरेट हो रहा है, वो चाहे फाइनेंशियल का हो. आई मीन वो एक हाइजीन के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं कि उसके डिजिटल हाइजीन किस हद तक है, नहीं है, कितना ज़्यादा वो डेटा सेगमेंटेड है, क्लेंस्ड है. बट द फैक्ट इज़ कि डेटा इज़ नाउ बीइंग क्रिएटेड, बट व्हाट आई सी इज़ डेटा बीइंग वेस्टेड, एग्रेसिवली वेस्टेड, प्राइमरली बिकॉज पाकिस्तान में हर बंदा एक साइलो में मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता. मैंने ना उनसे बात की रिटेलो वाली टीम से बात की, मैंने बात की एक और वो साहब बड़े कंपनी से आए थे, आई एम नॉट श्योर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा. दस्तगीर मैंने उनसे बात की. जब मैं उनसे बात करूं तो मैं बात करूं कि यार अच्छा तो आप लोग तो इस डेटा से क्रेडिट पे जा सकते हैं, तो हर बंदा मुझे ना स्माइल पास करके हाँ जी यही तो हमारा प्रोडक्ट का फनल है, आगे पढ़ने तो यही सी पे जाए. तो मैंने देखा, मैं कहा यार पहले तो 500 तो पहले वॉलेट्स पड़े हैं मार्केट के अंदर, फिर 500 बंदा लैंडिंग की सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर देगा. मतलब हर बंदे ने हर चीज़ खुद ही करनी है. यू नो, नो हेट टू देम, दीज गाइज आर डूइंग सम रिमार्केबल वर्क. बट एट व्हाट पॉइंट कैन वी आइदर टू थिंग्स, अगेन मैं कुलसुम लखानी वाली इन्वोक करूँगा, आइदर द टू थिंग्स कैन हैपन, राइट. आइदर वी कैन से कि यार वी बिगिन टू ट्रस्ट ईच अदर, you do what you're doing and maybe I'll focus on the lending side of things. Actually three things हो सकती हैं. Either you can be collaborative with your data, and I'm not saying पाकिस्तान में फिर वो सभी लोग कहेंगे यार डेटा जो है वो आपका प्रोटेक्टेड है. मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एज कंज्यूमर का पूरा उठाओ लाके फेंक दो. आप क्रंच करो, प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल लाके ओपन मार्केट में शेयर कर दो, और rather create a model where the consumer can benefit from that as well. दूसरा, दरमियान में कोई प्लेयर आता है और वो आके कहता है कि यार मैं वो बन जाता हूँ, what you might call it, escrow, data escrow, right? So you give some, you take some. So it's not open for everyone. यार चलता फिरता बंदा है, जितनी आप मार्केट के अंदर जितनी आप यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. So if you get something from me and I get something from you, we both can have some sort of an exchange. And so to be very honest, the pivot that I see from MasterCard in a lot of areas, मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो सर्विसेज में आए सोचते हैं कि उन्होंने कहा कि यार ठीक है, पहले आप पैसे की लेयर थे, अब आप डेटा की लेयर बन जाओ, और उस डेटा की लेयर में आप एडिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दो, उसमें आप 10 और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो. तीसरा, मुझे प्योरली मुझे पाकिस्तान में एवरीबडी वांट्स एन IT सर्विसेज बिजनेस दैट इज़ एक्सपोर्टिंग, or wants to create a product business that is essentially an op heavy airlift. But nobody wants to really do this. ये बड़ी छोटी basic services की problems है, right? कि why does every single startup needs to hire a data scientist, whereas one startup can hire a bunch of these experts and really be king while servicing 50 different startups essentially. बट मुझे लगता है कि जब तक ये वाला, अभी हम फेज़ 1 में हैं जहाँ पर हर बंदे ने एक इनिशियल, एंड इट्स गुड दैट वी कम हियर, बट इससे आगे जब तक हम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन में नहीं जाएंगे तो मर्जर्स होंगे, एक्विजिशन होंगी,
या दरमियान में एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट आएगा थ्रू वन ऑफ दीज डिफरेंट राउट्स, जिसमें यू विल हैव टू बिगिन टू ट्रस्ट ईच अदर, नॉट थिंकिंग यार अगर मैंने उसको शेयर कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगा और वो बहुत बड़ा मगरमच्छ बन जाएगा। ना वो बन सकता है ना आप बन सकते हैं। इनफैक्ट पूरी स्पेस ग्रो कर सकती है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? लेकिन सबसे पहले तो ये गेम आइसोलेशन में खेलने वाली है ही नहीं, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा शेयरिंग की सक्सेस हमने दुनिया में देखना शुरू कर दिया। यूरोप में ओपन बैंकिंग के थ्रू, ओपन एपीआई के थ्रू डेटा अब 10-12 साल से शेयर हो रहा है, इफेक्टिवली 7-8 साल से शेयर हो रहा है। एंड दैट इज़ वेयर द एवोल्यूशन इज एज वेल। जब मैं बात कर रहा था पहले, द 4 C's ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट इफ यू विल, द कंपीटिंग माइंडसेट हैज़ टू बी पुट असाइड। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देखें, आप भी अकले कुल नहीं है। अगर आप एक डेटा एग्रीगेटर हैं, यू हैव गैप्स. Who's going to help you fill those gaps? Players who are playing in that space where you're not capturing that data, and then you complement them by providing them the data that you have. Right. So you start to create a fuller picture of the customers that you're trying to service. So you're absolutely right. ये next evolution है. Collaboration होना ज़रूरी है. So collaboration and complementing are the second and third C's of that 4 C's of ecosystem development. कि आपने पहले समझा कि आप कैसे दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फिर आपने सोचा कि यार आप कोलैबोरेट कैसे करेंगे। और अगर आप इन तीनों सीज़ में कहीं पे भी अपने आप को नहीं देखते, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, यू विल आइदर कैपिचुलेट टू द इनकम्बेंट्स, और यू विल कैपिचुलेट टू द प्रॉब्लम, और यू विल कैपिचुलेट टू समबडी हु इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी बॉच्ड मैनर, बिकॉज यू हैवंट अप्रोच्ड द प्रॉब्लम होलिस्टिकली. So before you get to that 4 C of ecosystem development, जहाँ पे capitulation और consolidation हो, you really have to find avenues to figure out कि यार as a fintech, अगर हम दस्तगीर की example ले लेते हैं for example, कि B2B business है, उसके अंदर हमारे पास कुछ data है, बैंक इसी business को serve करता होगा किसी तरह, उनका data पकड़ो, telco इसको serve करता होगा, उनका data पकड़ो, let's create a picture that we can all share, right? इसके अंदर data only players भी आके खेल सकते हैं by the way, राइट, जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो डेटा एग्रीगेशन करें, जिनका काम ही है कि वो डेटा की एक एक्सचेंज बन जाए. यहाँ से अनोनिमाइज डेटा लिया, यहाँ पे दिया, यहाँ से वो एनालिटिक्स ली, यहाँ पे दी. यूर राइट, बिग प्लेयर्स, द इनकम्बेंट्स, इंटरनेशनल इनकम्बेंट्स आर थिंकिंग along those lines. लेकिन we need local solutions, because local market contextualization के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम local data को समझें. Big players don't really understand local data. They will need partners who can help them understand that local data as well. So yes, it is a data play, but in the absence of those handshakes, in the absence of you wanting to work with each other, you would find that you will never be able to service the market that you want to in the manner that you want to. So मेरा तो एक ही गर्दान है, और ये है कि for all the fintech players, for all the startups, for all the future billionaires, you can only get there if you decide to collaborate with other players in the same space, and you will find that it'll benefit both of you. Make sense. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब हम बात करते हैं फिनटेक की, राइट, ज़ाहिर है एज कंज्यूमर्स आपने बोला कि कैश आउट के ऊपर भी कमीशन नहीं होना चाहिए. मेक सेंस, उसके ऊपर कमीशन देना कम्प्लीटली लॉजिकल है. और आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ करेंसी एंड डिजिटल सर्कुलेशन के अंदर डेफिनेटली मैं कहूँगा रेगुलेटर नॉट एज मच, बट मे बी गवर्नमेंट, हुकूमत वक्त जो भी होगी. अभी वो रिसेंटली हमने देखा क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है जी 1% POS लग गया, चार्ज लग गया. दीज आर रियली स्टूपिड policies that are disincentivizing digital payments, when in actuality the more payments are done digitally, the amount of problems that the governments can solve from transparency, tax collection standpoint, and so on and so forth, and data gathering as well. So government का तो एक point के ऊपर वो role है. But अगर मैं जनरली पूछूं कि यार ठीक है, ईजी पैसा है या जैज़ कैश है या सादा पे है. सादा पे कहते हैं, सादा पे वाले साहब ने उस दिन आके बोला, उन्होंने कहा कि यार पैसे ट्रांसफ़र पे कोई फ़ी नहीं है, डेबिट कार्ड के ऊपर कोई फ़ी नहीं है, ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई फ़ीचर हो. ट्रांजैक्शन मान लिया उसने, उससे कमा लिया मर्चेंट की, उससे कुछ अमाउंट उसके पास आ गई. बट जस्ट द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, ऑनेस्टली ये मुझे आपको पता नहीं फ्रोयो वाली एक्सप्लोजन याद है नहीं याद. पाकिस्तान में, दुनिया में भी हुई थी, पाकिस्तान में भी हुई थी कि एक दुकान खुली, बड़ा मज़ा आया, 100 दुकानें खुल गई,
लाइक लिटरली उसकी वो इकोनॉमिक सेंस ही ख़त्म हो गई, अब एक दुकान भी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। और इस वक्त फिनटेक के साथ भी यही चल रहा है इस वक्त कि एवरीबडी इज़ इन अ फिनटेक। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी ऐप डाउनलोड करूँ। मेरी गाड़ी चलाने वाली कंपनी का भी वॉलेट आ गया है, मेरे खाना डिलीवरी वाली का भी वॉलेट, मतलब इट्स जस्ट एन एक्सप्लोजन ऑफ वॉलेट्स एंड इट्स बिकॉज फिनटेक इज नॉट पेटेक, राइट? Everybody is trying to solve the same problem. And you will start to see consolidation in this space, in my opinion. Fintech बहुत बड़ी दुनिया है. इस वक्त तक हमने RegTech, application of AI and compliance नहीं देखा. हमने LendTech नहीं देखा. हमने अभी तक पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं देखी. इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज इज नॉट जस्ट मी गोइंग एंड मेकिंग अ पेमेंट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि पहला तो मुझे ये बताएं कि एक तो व्हाट आर द, मैं बहुत सारे हंड्रेड्स होंगे प्रॉब्ली, बट व्हाट आर सम ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ ग्रोथ जो आपको नज़र आता है जहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा. एक तो ये. दूसरा ये कि वेयर इज़ द मनी, लाइक इट्स डेफिनेटली नॉट इन, बिकॉज जब हम बैंक्स की बात करते हैं, इस सवाल को पूछने का मकसद मेरा खासकर ये है कि जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि बैंक्स क्यों पाकिस्तान में इतने इनएफिशिएंट हैं, तो वो ये कहते हैं कि यार जब बैंक्स का सारा पैसा टी बिल से बन जाएगा तो वो किसी को क्यों ख्वारी करके किसी को लोन देंगे, क्यों ख्वारी करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे. जब बैंक्स को जो आप उनकी वो बैरियर्स है ना कि यार ये बंदा जो है नज़र आ रहा है शक्ल से कि ये 10 लाख रुपया या एटलीस्ट एक्स अमाउंट रखेगा जिससे हमने इतना पैसा कमाना है, उसको वो सर्विस करते हैं, बाकी सबको वो डिसरिगार्ड कर देते हैं. तो ये आज जितना भी हम गुण गा लें कि फिनटेक इज़ गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, वो आपने क्या है फर्स्ट फंडामेंटल रूल वाला जो है कि मैं अगर उसमें जाके फिगर आउट करने की कोशिश करूँ तो मैं उनका एक इंसेंटिव देखना चाहूँगा ताकि उससे मैं एक पिक्चर पेंट कर सकता हूँ कि व्हेन ऑल ऑफ दिस इज सेड एंड डन एंड ऑल द मंजन एंड द मार्केटिंग कॉपीराइट्स आर साइड, वो क्या एक्चुअल आउटकम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार एक एवरेज कंज्यूमर से ये पैसा क्या ये पेमेंट ट्रांसफर्स के ऊपर पैसे कमा रहे हैं, क्या ये फ्लोट पे पैसे कमा रहे हैं, क्या ये लेंडिंग पे पैसे कमा रहे हैं, वेयर इज़ द मनी रियली. सो the money is in several pockets. It's not just in lending. Lending, there is money, yes, but there's also a lot of potential to be a predatory lender. तो lending में पैसा है, deposits में शायद पैसा है because you can earn float. Payments में अनकरीब पैसा गायब हो जाएगा. ठीक है, right? Completely गायब हो जाएगा. Yes, I expect revenue from payments going down. जहाँ पे मुझे fintechs नज़र नहीं आ रही वो हैं जो कि बैंक्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. नो, एवरी बैंक वांट्स टू बी डिजिटल, बट नो बैंक इज रियली वर्किंग ऑन डिजिटाइजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस दैट दे हैव बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स. और अगर आपको फ्रंट एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, कस्टमर तक जाना है, तो आपको रेगुलेशन को एडहेयर करना होगा, लाइसेंस लेना होगा. आई डोंट सी एंटिटीज हु आर बिल्डिंग white label digital solutions for banks. I don't see entities that are bringing ideas that they can leverage, for which they can leverage the bank's license. Do you think that's because there is a lack of consumer trying to build products for the banks, or there is a lack of demand from the bank side where they're like, यार why मैं HBL हूँ, तुम छोटे स्टार्टअप आके मुझे बताओगे कि मैंने किस तरह डिजिटाइज कर. लाइक सो देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ अ सेट लेगेसी मेंटालिटी एज वेल ना कि यार या तो मैं तुम्हें बाय आउट करके मैं अपनी टीम में इंटीग्रेट कर लूँगा और फिर मुझे पता है मैंने किस तरह से काम करना. हैविंग वर्कड विद HPL, आई कैन टेल यू दिस. जब हमें चैटबॉट बनाना था, वी डिडंट मेक इट आवरसेल्व्स. वी एक्चुअली वेंट टू द मार्केट एंड वी गॉट देम टू मेक इट फॉर अस, एंड दैट एंटिटी दैट मेड द चैटबॉट मेड मनी. नो, बट देयर इज अ डिफरेंस. एक बात ये है कि यार मैं किसी से सर्विस लेकर मैं कोई प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ, जो कि मैं उससे इस वजह से एग्री नहीं करता मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर अगेन लाइक आई सेड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, राइट. एंड सो जब आप थर्ड पार्टी के पास जाते हो तो मोर ऑफन देन नॉट आपका डाउन टाइम जो ऐप्स में मसला आता है कि यार फर्स्ट ऑफ द मंथ चोक हो रही है, फिर वो 2-3 साल का रोने रुलाने के बाद फिर फाइनली 1 दिन 3 दिन के लिए गायब होकर फिर एक अपग्रेड आता है. वही चीज़ इन हाउस कैन डू अ मच बेटर जॉब. इफ़ यू वांट टू बी अ टेक्नोलॉजी कंपनी, यू बी अ टेक्नोलॉजी कंपनी, यू डोंट मार्केट इट, राइट. मैं ज़्यादा ये कह रहा हूँ कि व्हाट इफ़ फॉर एग्जांपल बैंक्स डू देयर लेगेसी बिजनेस, दे डोंट गेट इनसिक्योर एंड से कि यार ये इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह है.
जब बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में आपने पब्लिशिंग में काम किया, आपको याद होगा जब बसफीड आया था तो पूरी इंडस्ट्री का ये था कि भाई हम तो ख़त्म हो गए। एंड द फैक्ट इज़ कि आज 10 साल बाद बसफीड लॉसेस में, उतने ही लॉसेस में, और न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ न्यूयॉर्क टाइम्स, राइट। एक सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिजिटल ने बहुत सारे लोगों को इनसिक्योर किया। अच्छा, यही बात हुई जब हम जैसे आए ना, तो टीवी वालों को लगा कि यार ये तो क्या हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने खान साहब का पॉडकास्ट किया तो 4 एंकर्स है पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, और मैं उस वक्त अपनी टीम को ये बता रहा था, मैंने कहा यार वाई आर यू गेटिंग इनसिक्योर, लाइक यू हैव, आपकी पूरी एक इंडस्ट्री है, आपका एक काम है, मैं आपका काम कभी भी नहीं छीन सकता। और द फैक्ट इज कि आप मेरा काम नहीं कर सकते। अग्रीड, राइट, क्योंकि मेरे कंज्यूमर को मैं भी चाहिए और आप भी चाहिए। सिमिलरली इट्स सो व्हेन आई से कि यार बैंक को प्रोडक्ट की सपोर्ट, छोटी सी मिसाल है, बैंक कहता है कि यार मैं ऑफर करता हूँ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब वो म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रहा है, तो मुझे बजाय इसके कि मीज़ान बैंक अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक थर्ड पार्टी कंसल्टिंग कंपनी को हायर करके अपने लिए एक ऐसी म्यूचुअल फंड्स की ऐप बना दे जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स को प्रोक्योर करना बड़ा आसान है, वाई डोंट मीज़ान बैंक गो टू म्यूचुअल प्लस थर्ड पार्टी स्टार्टअप एंड इंटीग्रेट विद दैम सो दैट दे कैन डू व्हाट दे डू। एंड आखिर में म्यूचुअल फंड वो नहीं कर सकता, उसके पास लाइसेंस नहीं है, और म्यूचुअल फंड जो मैनेज करना है वो मैं करूँगा, क्योंकि मेरा कोर बिजनेस वो है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसके फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस के अंदर घुसूँ और उसकी ऐप एक्सपीरियंस में घुसूँ और उन सारी चीज़ों में घुसूँ जिसमें मेरा आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज इन। उसमें मुझे लगता है कि बैंक्स जनरली आर नॉट वेरी ओपन टू ओपनिंग अप। You're right. Banks are starting to learn that lesson, right? But they're also realizing कि यार वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते। I know at least 6 banks जो पिछले 4 साल से डिजिटल लेंडिंग पे काम कर रहे हैं। It's not rocket science, you know. It's not like कि उनको अपने डेटा साइंटिस्ट फुल टाइम लगा के एक एल्गोरिथम बनाना है। It's very simple. लेकिन a company like LFD for example, जो कि जिसका काम है डेटा एनालिटिक्स का, वो आके वही काम उनके लिए ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जल्दी कर सकती है। बट दे आर नॉट बीइंग लेट इन, and other data companies, they're not being let in because every bank now wants to have their own data scientist team. Data scientist है नहीं मुल्क में, और आप हर कोई डेटा साइंटिस्ट हायर करना चाह रहा है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि जो एक डेटा साइंटिस्ट अल्फला के साथ काम शुरू करता है, वो 3 महीने बाद HPL चला जाता है, वहाँ से उसकी मीज़ान चला जाता है, और वो एक ही व्हील को बार बार री इन्वेंट कर रहा है बैठा हुआ। वो एक दफ़ा उसको करके वो बहुत आसानी से एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना सकता है, बट वो जहाँ पर वो 12 महीने 12 डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इंक्रीमेंटली काम कर सकता है, वो 12 महीने एक ही चीज़ के ऊपर हर महीने काम कर रहा है। वो एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को सांझे। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू ट्राई टू बिल्ड वॉल्ड गार्डन्स। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, हमने 10 साल लगा दिए, मैं कम से कम मैं 10 साल से देख रहा हूँ दैट वी बीन ट्राइंग टू बिल्ड वॉल्ड गार्डन्स इन दिस कंट्री, स्पेशली इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। हमें ओपन स्पेसेस क्रिएट करनी है जहाँ पे कोलैबोरेशन हो, और जहाँ जो आपने बात की कि यार why make something that somebody else is already making when you can partner with them and give them the platform. जो कस्टमर बेस आपके पास है उसके पास नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट उसके पास है वो आपके पास नहीं है। जो रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है वो फिनटेक के पास नहीं है। जो ट्रस्ट आपके पास है वो फिनटेक के पास नहीं है। तो अपना ट्रस्ट, अपनी रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग, अपने कस्टमर बेस खोलो, उनकी प्रोडक्ट, उनकी इनोवेशन, उनकी डिजिटाइजेशन को पकड़ो और मेक समथिंग दैट वर्क्स फॉर योर कस्टमर, that understands the customer, that services the customer. ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। दुनिया ट्रायल एंड एरर से समझ गई है। पाकिस्तान में ये अंडरस्टैंडिंग बैंक्स में आने की अभी ज़रूरत है। ये अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता आएगी। Every bank wants to go digital. They don't know how to. Every fintech wants to have a large customer base. They don't have the access. So I see a big open ground जहाँ पे आप collaborate करके बहुत कुछ बना सकते हैं। Achha, we're at the 1 hour 30 minute mark, and so I'm going to sort of begin to wrap this up. There's one question, and I've sort of thrown nuggets here and there, but मैं चाहता हूँ कि आप उसको directly tap करें. Before starting, you were mentioning something similar about this as well. जब हम बात करते हैं, अगेन मैंने इसमें कहा कि देखें जो छोटा कस्टमर है ना, उसको डिजिटल पे लाना की कोई ज़्यादा इंसेंटिवाइजेशन नहीं है ना, कैपिटलिस्ट सेटअप for any service like any bank, any fintech or whatever, क्योंकि they don't expect कि उससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। हाँ, अगर वो इतना ज़्यादा काम को इतना इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चले जाएं कि जो प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग दैम एंड कीपिंग दैम एज वन एंटिटी amongst
20 million entities and based the entirety of all of them ends up making some money, sure, हम उस पे जा सकते हैं. And so I spoke to someone from the Abhi team and they mentioned कि यार हमारा सारा जो गेम है वो है ही है कि जितना ज़्यादा बंदा होगा उतना, क्योंकि उनके ये है कि वो बेसिकली आपको क्रेडिट के ऊपर आपको आपकी तनख्वाह दे देते हैं, अर्न वेज एक्सेस एंड वो उसके ऊपर वो तो उनकी जो परसेंटेज जो जा रही थी वो बड़ी हाई थी कंपैरेटिवली. और सो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी ये तो आपका जिस बंदे को आप टारगेट कर रहे हैं वो बेचारा उसको वैसे ही जो है पैसा नहीं है उसके पास. लाइक मैं जो हूँ, मैं अमीर हूँ तो मुझे सस्ते में मिल जाता है लोन, या मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 30 मतलब मेरे क्रेडिट कार्ड में 30 डेज तो मुझे वैसे ही मिल जाता है, राइट. जो उसको असेंशियली क्रेडिट कार्ड है ना वो, लेकिन उसके ऊपर वो 2.5% दे रहा है महीने के, जो कि साल के अगेन बार बार निकालने के बाद साल के उसके 20-25% पे वो पहुंच गया. तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा यार ये सारी की सारी गेम जो है ना इकोनॉमी ऑफ स्केल की है. मुझे ऑपरेशन चलाने के लिए मेरे पास अगर 1000 बंदा आ जाए तो मैं 2.5% चार्ज कर रहा हूँ. शायद मेरे पास जब 10 मिलियन बंदा होगा तो मैं 1% पे चला जाऊँगा, नो इशू. बट अगेन लैंडिंग में आप फिर भी वो कर सकते हो, बहुत सारे और केसेस में नहीं है. तो एक तो सवाल अगेन मेरे लिए यही आता है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल incentive for any company to be looking at the masses and until and unless masses, मैं masses अभी गाँव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यार आप KLI के अंदर ही ना मेरा हर टॉप टू बॉटम अक्रॉस क्लास लाइन्स हर बंदा डिजिटल पे आ जाए. 70% ऑफ योर GDP इज KLI, राइट. आप वो कर लें, बाकी तो सब ट्रिकल पे वैसे ही हो जाएगा कि यार जो इस्लामाबाद में जो बंदा रह रहा है उस वो पीछे गाँव वाले को भी बोलेगा यार तू मोबाइल ऐप डाल ले. तो उसको सर्विस करने के लिए पहला तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, पोटेंशियल. दूसरा मुझे एक और जो बड़ा मसला नज़र आता है, आई हैव स्पोकन टू मल्टीपल पीपल अबाउट दैट. मैं और ये सिर्फ फिनटेक में नहीं नज़र आता, मरहम एक ऐप है वो आए हुए थे, उनको भी मैंने यही बात बोली. मैंने कहा जी आप उस पर एंटर करते हो ऐप के अंदर तो 50 आइकॉन्स आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन चाहिए. मैंने कहा आम आदमी को तो ये भी नहीं पता, और डॉक्टर साहब होते हैं और क्वैक्स के पास जा रहा है वो, ऑनेस्ट टू गॉड. मतलब someone who works for me, she came to me one day and she was like my nephew wants to get a job. तो मैंने कहा किस किस्म की जॉब. तो उन्होंने कहा कि ऑफिस बॉय की जॉब लग जाए. तो मैंने कहा अच्छा इससे पहले उनका क्या एक्सपीरियंस था. तो उन्होंने कहा इससे पहले वो डॉक्टर थे. मैं बड़ा शॉक हुआ, मैंने कहा क्या मतलब like what is this conversation, right? So I was like what do you mean? So, हाँ वो एक डॉक्टर साहब के साथ थे तो 5 साल उन्होंने वो किया, तो उन्होंने क्लिनिक बना ली और वो जो है ना हमारे इलाके में लोगों का इलाज करते थे और ये सारी बीमारियों वगैरह का. तो अब ये है कि वो कुछ पता नहीं मसला, उन्होंने बोला वो कोई मसला हो गया. वो मसला प्रॉब्लम यही हुआ होगा कि वो DCGC आया होगा, उसने बोला होगा कि भाई सर्टिफिकेशन दिखा तू टीके लगाता फिर रहा है, क्या सीन है. तो अब वो कह रहे हैं अपना को डाउनग्रेड करके वो आ रहे हैं इसके अंदर. बट that's quite a steep jump though. that is भूल गया मैंने इससे पहले बात क्या बोली थी कि how do you include the masses. हाँ. एंड सो मरहम वाले साहब को मैंने यही बोला, मैंने कहा कि लाइक लोग तो इस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं कि दे डोंट इवन रियलाइज कि वो डॉक्टर है कि नहीं है. आपने उठा के स्पेशलाइजेशन पूछी हुई है. सिमिलरली आप इजी पैसा पे जाते हैं एंड इट्स अ नाइटमेयर टू गो थ्रू. फॉर मी इट्स अ नाइटमेयर. मैं उनकी अपनी सर्विस, मुझे पता होता है इजी पैसा ये सर्विस ऑफर कर रहा है, आई एम अनएबल टू गेट इनटू इट. एंड अगर मैं वेस्टर्न और ईस्टर्न को का डिफरेंस देखूँ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो वेस्ट हैज़ अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यूजर्स. And so they put it out there in front of you, Facebook, Instagram, whatever, the icons are very there. And पाकिस्तानी क्योंकि वेस्टर्न उसको देखते हैं, उसी से इनकरेज होते हैं, तो वो उसकी वजह से वो उस तरह के इंटरफेसेस बना रहे हैं, उस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स बना रहे हैं. उधर ही मैं जब जाता हूँ और जाके मैं चाइना को देखता हूँ, एंड चाइना हैज़ बिन फेयरली रिमार्केबल एट रीचिंग द मैसेस. चाहे आप टिकटॉक को उठा लें, चाहे आप स्ट्रीम कर को उठा लें, बीगो लाइव को उठा लें, चाहे आप प्रेडेटरी लोन शार्क ऐप्स को उठा लें. आपने आई डोंट नो उसको फॉलो किया नहीं किया, रीसेंट टाइम्स के ऊपर ऐसी ऐप्स आई हैं जो कि चलता फिरता हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, पता लग रहा है जी पीछे पड़ गए हैं. वो 10,000 रुपया लोन लिया, महीने के अंदर 20-25 हज़ार रुपया निकाल लिया. It's on the black mark on the evolution of fintech in Pakistan. Absolutely. But the fact is while you have to control them and while you have to talk about them कि ये कितना बुरा कर रहे हैं, you also have to really see कि यार मैं एक legitimate सर्विस ऑफर कर रहा था, मेरे पास तो कोई आ नहीं रहा था और इनके पास कैसे चला गया कंज्यूमर. There is something in the user experience that the Chinese understand, where it's so plug and play, it's so simple, the language is simple. How can you sell a lending product, which is a very complicated product, at exuberant rates to someone who can't even read and write? Yeah. So again, there's probably like 18 questions packed in that
so I will try to answer as many of them without letting my ADHD get the best of me. तो सबसे पहले तो ये कि देखें, it starts and ends with the user. हमने in an effort to make super app, हमने सब कुछ एक हर ऐप में डालना शुरू कर दिया ना. हर एक को सब कुछ नहीं चाहिए. If a person is coming to me for financial services, especially if that person is just starting out in the financial services space, when they're just starting a relationship, तो वो ये नहीं चाहते कि आप हर चीज़ उस पर ठोक दें. It's like, financial services is kind of like dating. You have to suss the person out. You have to understand कि उनकी needs क्या है. And build that trust also. And build that trust. And that trust comes from constant engagement. Right. Constant engagement आती है use cases से. सबसे आसान यूज़ केस जहाँ पे हमें ट्रैक्शन नज़र आई पाकिस्तान में वो है मोबाइल टॉपअप, राइट. वेयर एज टिल वेरी रिसेंटली अगर आपने मोबाइल टॉपअप की ऑप्शन ढूंढनी हो ना किसी ऐप में, तो आप नेविगेशन में ही 8-9 क्लिक्स वेस्ट कर चुके होते थे. अब थोड़ी सी समझ आई है, एंड नाउ मोबाइल टॉपअप इज़ फ्रंट एंड सेंटर बिकॉज दैट्स द नंबर 1 यूज़ केस फॉर ऑल फिनटेक्स. जाके प्रीपेड का बिल पे करना, पोस्ट पेड जो कि बहुत कम है उसका बिल पे करना है. Similarly, bill payment. तो इसको आप बहुत बेसिक कर दें. Why go beyond 4-5 tiles what a person needs? रूरल एरियाज में जाए उनको क्या चाहिए? बहुत से लोग जो हैं वो एहसास बेनिफिशरीज हैं, राइट. सो गिव देम एन ऑप्शन टू नॉट बी टेकन एडवांटेज ऑफ एट द ATM. एंड create financial education, create financial awareness, create financial savvy. उनको समझाओ कि यार कर्जा लेने का मतलब क्या है, पैसे खर्च करने का रिस्पॉन्सिबल तरीका क्या है. आई यूज़ एन ऐप कॉल्ड SoFi. SoFi has a wonderful experience because it educates me. As I'm doing something, it educates me about my credit, it educates me about the investments I want to make, it educates me about the market news that is happening. But then again, that's made for the educated customer. For the uneducated customer, उनको basic चीज़ समझाना कि यार ATM का, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल खाली ATM पे नहीं है, उससे आप राशन भी ले सकते हैं, राइट. फिर राशन वाले को जाके इनेबल करना कि वो ऐप से पैसे ले सके ताकि वो जाके वो एक्सपीरियंस कर सकें. ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर. हम फ़ौरन सोचते हैं एंड में यार हम पैसे से कैसे बनाएं. हमें पहले इकोसिस्टम क्रिएट करना है. इसके अंदर गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा रोल है बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्टर ऑफ पेमेंट्स एंड द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेमेंट्स. सैलरीज की बात में, सोशल सेफ्टी नेट की बात में, उनको ये चीज़ें डिजिटाइज करनी पड़ेंगी. सोशल सेफ्टी नेट पेमेंट्स should not be given out in cash. It should be given out in the form of money in your wallet that you can go and use at a utility store, or you can use to buy. Like I found it very interesting that they gave out ये एहसास का जब ये मसला आ रहा था तो उन्होंने कहा कि जी आपको सब्सिडी मिलेगी, तो उन्होंने कार्ड्स दे दिए उठा के. Like why couldn't you do an app thing where you can just, क्योंकि ऐप के अंदर आपका डेटा भी सारा आ रहा है, वेरिफिकेशन भी सारी है. Governments can really encourage people कि वो किसी और चीज़ के लिए करें या ना करें, जिस चीज़ के लिए उनको फ्री मनी मिल रहा है उसके लिए तो वो करेंगे ही ना. और आप देख लें, टोल पे देख लें ना, जहाँ पे उन्होंने होलिस्टिक थिंकिंग लेके आए. एंड दिस इज समथिंग दैट मास्टरकार्ड इनिशिएटेड इन पाकिस्तान. टोल पे लेके आए, अब M-Tag पे आते जाते लोग डिजिटली पे करते हैं, आइदर थ्रू जैज़ कैश और थ्रू द मास्टरकार्ड इंस्ट्रूमेंट्स. सो you have to think about the problem holistically and you have to think about how will you engage. जहाँ मैं चाइनीज़ की बात की ना, चाइनीज़ शुरू यूज़र से करता है. वो कहता है यार ये how do I get, टिकटॉक की अगर हम बात करें, how do I get a person to be addicted to the scroll, right? क्या मैं करूँ, 3 सेकेंड 7 सेकेंड ज़्यादा का किसी का अटेंशन स्पैन नहीं है, तो वो मोड ही ऐसा दो कि वो लोग उससे एडिक्टेड हो जाएं. यू हैव टू क्रिएट दैट एडिक्शन इन पेमेंट्स एज वेल, बट इन अ गुड वे, नॉट नेसेसरली इन अ bad, useless content. But see, that's the thing. It's not. A lot of people see TikTok ki rise as 7 to 10 seconds video. The fact is, TikTok now has, for some people, an option of up to 30 minutes. For most people, an option of up to 10 minutes. And you're beginning to see a lot of longer formats of content there as well. So what we realized is that the 5 to 7 minutes was 5 to 7 seconds was a means to an end. It wasn't the end. Consumers are ready to watch longer videos as well. जब आप टिकटॉक को रियली एनालाइज करते हैं ना, तो टिकटॉक का बड़ा एक बेसिक सा फीचर है, और वो ये है कि आज अभी इसी वक्त अगर आप इंस्टाग्राम पहली दफ़ा डाउनलोड करें और आप टिकटॉक पहली दफ़ा डाउनलोड करें,
जब आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं ना तो एक आपके पास एक वॉल आती है और उस वॉल के अंदर लिखा आता है नया अकाउंट बनाना है नहीं बनाना। और जब आप कहते हो कि मैंने बनाना है तो आप उस पर क्लिक करते हो तो 10 ऑप्शंस आती हैं। उन ऑप्शंस के थ्रू मनूवर करते कराते जब आप फाइनली अपने अकाउंट में एंटर होते हो तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ आता है कि यार ये 4-5 ऑप्शंस हैं, ये मैं तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, गोरे के लिए ये क्यों था? क्योंकि गोरा बहुत मेच्योर कस्टमर है, तो गोरे को एक्चुअली अनोयंस होती है, गोरे को डिसीजन फटीग है। गोरा कहता है कि मुझे मिनिमल नॉइज़ दो और मैं जो मैं चाहता हूँ, मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ, तो जो मैं चाहता हूँ मैं खुद ढूंढ लूँगा। सो सर्च बिकेम प्राइम एंड एवरीथिंग एल्स केम आफ्टर दैट। टिकटॉक ने क्या किया कि टिकटॉक ने कहा कि यार वो था नए यूज़र के लिए, जो दुनिया में पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा नया यूज़र इंटरनेट के ऊपर आया। उसको तो पता ही नहीं था कि वो क्या चाहता है। आप यही चीज़ मैंने इंस्टा का बताया, मैं आप टिकटॉक को बताता हूँ आपको। आप टिकटॉक पे जब एंटर होते हैं ना, ऐप खोलते हैं और कंटेंट आ रहा होता है। मीनवाइल 5, 8, 10 सेकंड के बाद वो आपको एक पिंग भेजता है, क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर आप उसकी जब कंटेंट में आप इन हो गए हैं ना, तो आपने कमेंट करना है, आपने ये करना है, वो करना है। वाइल यू आर ब्राउजिंग एंड यू आर लर्निंग एंड यू आर बिगिनिंग टू आइडेंटिफाई थिंग्स दैट यू कैन डू विद इन द ऐप, यू आर लॉक्ड आउट ऑफ दोज थिंग्स। सो वहाँ पर जाकर वो आपको कहता है अच्छा यार अगर ये करना ही है तुम्हें तो अकाउंट बना लो। ठीक हो गया। अब वो आते हैं अकाउंट बनाने पे। आप अगर टिकटॉक खोलें ना आज और जाके देखें, कोई भी मशहूर वीडियो चल रही होती है, वो आपको मोस्ट पॉपुलर दिखा रहा होता है, उस पर कॉमेंट सेक्शन में जाए, 95% of the user accounts that you will find will be like Kamran 00047, user 3999928, user 25525। क्या वजह है? क्योंकि जब आप जाते हैं और जाके उसमें जब आप खोलते हैं उसका अकाउंट बनाने के लिए, तो every single option has an option of auto set username, auto set password, ऑटो सेट इन्फॉर्मेशन, और 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर आपको डालनी है और वो आपसे वो जेंडर का पूछता है, वो ड्रॉप डाउन के ऊपर है। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि यार अच्छा ये ऑप्शन है तो उसमें से यही है ये। सो दैट इन सेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, राइट? क्योंकि इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात मैंने शायद किसी को आज से 4-5 साल पहले की थी कि बैंक्स हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक कंटेंट कंपनीज। हाउ डू यू क्रिएट दैट एडिक्शन? अकाउंट तो आपने भी बनवाना है, हाँ, लेकिन वाई पुट देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ कि यार अपना KYC करो। गिव देम लिमिटेड यूज अकाउंट्स जहाँ पे वो सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकें, सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर सकें जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन देता हो। एंड दैट यू कैन डू विद रास्ट डे। यू कैन जस्ट से कि यार नहीं बनाना अकाउंट, अच्छा ये वीडियो देख लो कि अकाउंट इस्तेमाल कैसे होता है, वीडियो देख लो अबाउट व्हाट lending could benefit, how lending could benefit. Financial services is a very cumbersome, boring thing, right? Yeah. But you can make it interesting, especially for the new to bank and new to banking customers. और एक दफ़ा जब उन्होंने content consume कर लिया, now they have a desire to do something. You gauge that desire and get them to say कि यार अब तो अपना अगर मोबाइल नंबर डालोगे तो तुम्हारा रास्त पे अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। आप उससे इन्फॉर्मेशन इन ट्रिकल्स लें, टॉरेंट्स में ना लें। हाँ, एग्जैक्टली। एंड आप हर इन्फॉर्मेशन के साथ आप उसको इंसेंटिवाइज करें। ये हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको आई थिंक वी शुड पेटेंट दिस, यू नो, द TBT वे ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। बट आई वुड से कि हम we have to create this engagement जहाँ पे कस्टमर को ये ना लगेगा यार cumbersome process है। नहीं, मैं तो आपको सर यही कह रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या था। हाँ, मैं ऐप खोलूँ ना, ठीक है, बड़ी छोटी सी, I was talking to someone, a friend of mine who works in the AI space. I don't know if you've seen, but Google का जो personal assistant है, which is open to everyone, they can use that. वो अब उर्दू प्रॉपर समझता है with context. तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार जब मेरा एक ऐप खुले और उस ऐप के अंदर जो है ना मेरा हो मैस्कॉट पैसा मैन, ठीक है, और पैसा मैन आता है और पैसा पर्सन, राइट? सो पैसा पर्सन आता है और कहता है कि यार एक एनिमेशन से आती है और वो और एंड अगेन दिस स्टेम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ व्हाट द चाइनीज हैव डन। दे हैव इंटीग्रेटेड कॉइंस, दे हैव इंटीग्रेटेड you go to a live stream app and something happens and something happens and suddenly you know you're fully engaged. हालांकि it's an entirely different product to begin with. So gamification and personal assistance. आपका वो बंदा आता है, वो आपको आके वर्बली बताता है, कोई टेक्स्ट नहीं होता, वो आपको वर्बली बताता है कि थैंक यू फॉर कमिंग इन, आप आ गए हो, ये हो गया, आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आप ये सारा का सारा कर सकते हैं। अगर आप इसमें से ये चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, उसको अपीयर कराए बटन्स और साथ वो बोले ये चाहिए,
ये चाहिए, वो बोल के रिस्पॉन्ड करे, वो करे। मैं आपको बताऊँ, विद अ मिक्स ऑफ पर्सनल असिस्टेंट एंड अ मिक्स ऑफ गेमिफिकेशन कहाँ पर है कि जैसे ही आपने कोई एक भी चीज़ परफॉर्म की ना, तो वो ऐप आपको ऐसे सेलिब्रेट करे कि यार आपने तो कमाल नहीं कर दिया। डोपामीन। आप देखें कि आपका चलता फिरता हर बंदा, भाई मेरा कुक 8-8 घंटे लगा रहा था एक टाइम के ऊपर, एक स्ट्रीमिंग ऐप के ऊपर, क्योंकि दिन का उसका 15 रुपया बनता था इजी पैसा के ऊपर। यार आप मल्टीप्लाई करें, 15 क्या 450 रुपया बन रहा था उसका। उसको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि मेरा जो घंटा इवन एज अ कुक वो जो टाइम लगा रहा था, दैट वॉज नॉट वर्थ इट। बट द हुक वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि ही वॉज जस्ट ऑन इट कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ दी स्मॉल थिंग। इट्स जस्ट दैट अगर आप उसको लेगेसी एक बोरिंग अंकल्स वाले तरीके से देखेंगे तो ये नया बच्चा नहीं आएगा या ये मैसेज नहीं आएंगे आपके उसके। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू शुडंट वेट फॉर द पर्सन टू कम टू योर ऐप. यू शुड यूज द मीडियम वेयर दे आर गोइंग. अगर आपका बच्चा आज टिकटॉक पे जा रहा है या आपका जेनजी जो है वो यूट्यूब पे जा रहा है या किसी और टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पे जा रहा है, be there. Engage them where they want to be engaged rather than waiting for them to download your app and engage you there. Right? It's bring the horse. Don't bring the horse to the bring the horse to the water. Don't wait for the horse to come itself. But वही वाली बात है and इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात ये बोली engagement की कि when you have a personal assistant ना, काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि मैं काफ़ी लोगों को मैंने पॉडकास्ट से बुलाया था ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स वगैरह इसके ऊपर. सो लॉट ऑफ पीपल गॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान के यार हमने करना है. एंड देन दे स्टार्टेड गोइंग टू दीज सॉर्ट ऑफ अस्करी इंश्योरेंस एंड दीज वो, एंड एवरी टाइम देयर वाज ऑलवेज अ वॉल. देयर वाज लाइक कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका ये मसला है. सो पाकिस्तान में ना अगर बैंक अकाउंट खुलवाना हो या ये कोई एनीथिंग फाइनेंशियल रिलेटेड आपने करना होता है ना, तो एक गिल्ट होती है. उसने मेरी एक दोस्त की कॉल आई मुझे, उसने कहा मैं बैंक अकाउंट खुलवा रही हूँ, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरी कंपनी है, मेरा पैसा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह चोरी मैं कर रही हूँ. और बैंक जो है ना वो मुझे अब असेस कर रहा है कि यार और मेरे साथ भी होता है. मैं बैंक जाता हूँ ना, मैं वो करना शुरू कर देता हूँ कि जिस तरह मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, हालांकि मुझे धड़ल्ले से जाना चाहिए कि यार मैं अपना पैसा देने लगा हूँ. होता क्या है कि जब आप जो ख़वातीन ने मैसेज किया हम स्टॉक्स नहीं खोल सकते, हमारे पास इस लेटर का मसला है. बैंक्स का भी अगर आप नोटिस करें, द रीज़न वाई बैंक गोइंग टू अ बैंक इज सच एन एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस इज बिकॉज it's arbitrary. The requirement for documents is very arbitrary. If you know someone at the bank, if you have a relationship, you'll need 3 documents. If they don't know you, they will randomly add 4-5 more. Utility bill भी ले आएगा, ये भी ले आएगा, हस्बैंड का लेटर भी ले आएगा, जो हमें क्या पता आप कौन है. पर्सनल असिस्टेंट आपको क्या करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट दो और नहीं है तो प्लीज़ मत आना मेरे पास. वो कहेगा कि यार आपको पता है आपको खुलवाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए आईडी कार्ड. क्या आपका आईडी कार्ड बना है? आईडी कार्ड बनाने के लिए आप इधर जाएं. वो आपको एक टास्क दे दिया उसने, ठीक है, आप ये करेंगे तो आपको 5 स्टार मिलेंगे. वो जाके आपका आईडी कार्ड बनवाएगा. वो आपसे जाके कहेगा कि यार ठीक है तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं है, ओ कोई मसला ही नहीं है, आप अगर अपने इदारे में काम करते हैं वहाँ से बनवा लें. अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप उसके पास जाएँ और उससे जाके कहें कि इस तरह का एक लेटर बना कर दें. और getting to a point where that information can be pulled, right? Right? So getting to a point where the assistant is actually an assistant and is aggregating that information. First करो Google Assistant है, right? Google के पास मेरा Gmail है. Gmail में मेरी 12 साल की emails, 15 साल की emails पड़ी हुई हैं. It can pick out information and it can verify. लेकिन फिर वही educated versus uneducated का मसला है ना. तो आपको थोड़ा सा गाइडेड ले जाना पड़ेगा. लाइक बजाय इसके कि यार इफ़ मैंने एक फ्लैट आउट गेट कीप किया, मैंने कहा इफ़ यू हैव ऑल ऑफ दिस देन कम जॉइन द क्लब, इफ़ यू डोंट देन गेट आउट, राइट? रादर देन सेइंग वो आपकी वाली बात कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच ना, कि यार मैं रोता हूँ एज अ बैंकर कि यार पाकिस्तान में 12% इस वजह से क्योंकि यार हमारे लोग इतने जाहिल हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरी की हुई. तो भाई उनसे करवा लो ना, कस्टमर बेस बढ़ा लो. हालांकि अब आपको पता है कि पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक ने एक ऐसा अकाउंट बनाया जिसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है. वी कॉल इट द आसान अकाउंट. और अब उन्होंने उसकी सहूलत USSD पे भी दे दी है. यू कैन ओपन द आसान मोबाइल अकाउंट. शुरू तो करो ना, कहीं से तो शुरू करो. एंड दैट्स व्हाई जस्ट आस्किंग द फोन नंबर एंड द CNIC गेट्स यू एन अकाउंट टुडे. उसकी लिमिट 25,000 रुपये है. मोस्ट लोगों की यूसेज जो है वो 25,000 से कम है, राइट?
उससे तो शुरू कराए एंड गेट देम ऑन द जर्नी वंस. देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट. हमने इतने अकाउंट खोले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है. जिन 12% ने अकाउंट खोले हुए हैं उनकी कितनी ज़रूरियात हम पूरी कर रहे हैं, राइट? दे आर ऑल्सो अंडर सर्व्ड. सो वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू सर्व दीज कस्टमर्स the right way so that they feel the same level of intimacy with their financial services account that they do with their content provider. Yeah. Right? I'm a subscriber to TBT. जैसे ही आता है ये इंडिकेशन कि जी आ गया, मैं खोलता हूँ. मेरा बैंक अकाउंट मुझे कुछ SMS भेजे, नोटिफिकेशन में कहता है यार ये क्या आ गई कब? one more spam, right? Yeah. Why don't people enjoy that level of intimacy? Why do they equate going to a bank to going to a dentist or going to the court? Going to the court, yeah. Because it just is not a pleasurable experience. उनकी नीड्स मीट होती नहीं है, सवाल सारे पूछे जाते हैं, तो और आपको ये डर होता है कि यार मैं अगर ओवर एक्सपोज कर दूंगा अपने आप को, देखेंगे हमने आपसे काम ही नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ फॉर अस, राइट? ये भी तो मसला है ना. वो एक और है, सॉरी मैं ये लास्ट एनेक्डोट शेयर करूंगा, I'm gonna wrap this up. मेरे ऑफिस में एक लड़की आई, she just joined. So she came to me one day, she was like, मनोहर भाई आपसे एक सवाल है. मैंने कहा जी बताएं. उसने कहा यार मैं ना आपसे पहले एक काम कर रही थी, उस पर मैं बाहर फ्रीलांसिंग का काम चल रहा था. तो मैंने कहा कि अच्छा ज़बरदस्त, फ्रीलांसर्स तो बड़ा अच्छा कमा रहे हैं. हाँ वो ना मेरा उसमें महीने का 6-6.5 लाख रुपया बन रहा था. तो Where do I sign up? तो मैंने I was like, so what the hell are you doing here? Like what? So like हाँ वो असल में ना मुझे पता ही नहीं है. तो मैं एक्चुअली एक दिन गई उसके पास, अपने बैंक मैनेजर के पास. तो मेरे पास पैसे आते थे दुबई से, तो मैं ब्रांच मैनेजर के पास गई. तो वहाँ पर मैं पिछले पता नहीं 4 साल से उसके पास ही जा रही हूँ. बट उस दिन मैं गई तो मेरी बातचीत शुरू हो गई. रैंडमली मैं बैठी हुई थी, मेरी बातचीत शुरू हो गई. तो उसने कहा कि अच्छा आप क्या काम करती हैं? तो मैंने उसको बड़ा एक्साइटेड होकर बताया. मैंने कहा मैं एक राइटिंग कंपनी के लिए काम करती हूँ और मैं डिफरेंट आर्टिकल्स और ये लिखती हूँ, और मैं एज अ स्टूडेंट ये काम कर रही थी. तो बड़ा मतलब शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ, विच शी शुड हैव बीन. और मैं पूरी टीम रन कर रही हूँ और यहाँ पर जो है ना मेरा बड़ा अच्छा रेवेन्यू आता है. अच्छा ज़बरदस्त, ये वो तो आपकी टीम किधर होती है? उन्होंने कहा कि हाँ कंपनी दुबई में है, लेकिन एक्चुअली जो टीम है मेरी, सो उनको रेवेन्यू बाहर से जो आ रहा था वो दुबई से आ रहा था, वो है. लेकिन ये जो कंपनी है बेसिकली ये ग्लोबली सर्व करती है, बेस्ड आउट ऑफ इंडिया. गॉट फ्लैग्ड. KYC AML सब रेड फ्लैग्स हो गए. और वो बेचारी का बिजनेस सब ख़त्म. क्योंकि कंपनी जो है वो इंडिया में, अच्छा लीगली भी कहीं पे वो नहीं है ना कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, दुबई से बेस होकर कर रही है. आधा बिजनेसमैन इसी तरह काम कर रहा है. अब यूनिलीवर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, दे ऑल हैव हेड ऑफिसेज और पीपल हु आर इंडियंस. दैट्स द न्यू वर्ल्ड, राइट? या तो आपका एक फ्लैट आउट हो, बट वो कोर्ट की बात है कि some branch manager was like, listen, like I don't want to be involved. And so they were like, यार इसको तो कटाओ. उन्होंने उसको ब्लॉक मारा है ऐसा नेक्स्ट लेवल. उसने कहा यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहा, मुझे बताएं मैं क्या करूँ. So it's really unfortunate. देखो आप you've hit the nail on the head, right? हमने फाइनेंशियल सर्विसेज को एक तोहमत बना दिया कि we've made it so difficult for anyone. वो तो खैर सोफिस्टिकेटेड फ्रीलांसर है ना, बाहर से पैसा आ रहा है. बेचारा प्लम्बर हुज ऑल्सो फ्रीलांसर, बेचारा कारपेंटर हुज ऑल्सो फ्रीलांसर. मेरे घर लोग आते हैं तो आई बिकम अ बिट ऑफ अ स्टिकलर अबाउट एंड आई से यू विल नॉट गेट पेड टिल यू हैव एन अकाउंट. एंड देन आई वॉक देम थ्रू कि यार ये इजी पैसा खोल लो, जैज़ कैश खोल लो, व्हाटएवर. लेकिन उनको बैंक जाना कम्बरसम इसलिए लगता है बिकॉज बैंक में हर एक ने सूट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है. वो बेचारे सारा दिन काम करके आते हैं, चप्पलें पहनी हुई हैं, शर्ट पहनी हुई है जिस पे दाग लगे हुए हैं शायद, हाथ गंदे हैं. सो दे गेट ट्रीटेड एज इफ दे आर थर्ड रेट सिटीजन्स. जबकि ये लोग हमारी इकोनॉमी चलाते हैं. हमें तो उन जगहों पे जाके इन लोगों को साइन अप करना चाहिए और कहना चाहिए हम आपकी ज़िंदगी कैसे आसान बनाएं. हाउ कैन वी गेट यू नॉट जस्ट अ बैंक अकाउंट बट ऑल्सो वे टू गेट यू टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स. हाउ डू वी गेट यू टू बी ऑन हेल्प. और Sakoon.com, शायद Sakoon.com नहीं है लेकिन एक ज़माने में था. एंड सो गेट देम टू be their partner that makes their life easier. Enable them to live a life that is fulfilling, treat them with dignity, and serve them the way they want to be served. Not every small business or every consumer wants a loan.
They sometimes just want the ability to check their balance whenever they want to. Yeah. Sometimes they just want the ability to, transfer 10 rupees to their brother. Yeah. So don't create toll gates and walls. Make it simpler. Create an education environment. And I think that's where I would like financial services to see कि हम इतने आसान कर दें कि लोगों को पता ही ना चले कि यार हमारा बैंक हमारे साथ डील कर रहा है. It would be like having utility. You'll only know it's not there. You only know that it's not there when you turn on the switch and it doesn't work. Makes sense. We're again at the 1 hour 1 minute mark. I sincerely apologize. मैंने promise किया था कि मैं 2 घंटे में नहीं जाऊँगा, but conversation आज की अच्छी थी. अतिया भाई, thank you so much for coming in and sharing all that insight. I'm going to ask you one last question. Generally, जो कि मैं तमाम guests से पूछता हूँ. You grew up. I mean, you were born in Libya. That's a first for us. But you grew up in the US and you were there working in some very I think Johnson & Johnson would be a Fortune 500 company. It's a Fortune 30 company. Fortune 30 company. कोविड के टाइम पे भी उन्होंने वो मेरे ख्याल वैक्सीन निकाली थी, बड़ी इनकी लेगेसी है. उस तरह की आप कंपनीज़ के साथ काम करते रहे हैं, फिर आप छोड़ के पाकिस्तान आए, कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ तो समझ आई होगी, और फिर आप रुक गए. 11 साल आप यहाँ पर थे. आज भी आप इधर ही हैं और इधर ही काम कर रहे हैं. सो कुछ ना कुछ आपने, इवन amidst all of the political turmoil and नाजुक सूरत हाल and नाजुक modes that the country is going through, there is something that you might be seeing that other people might not be seeing. That is the more of an optimistic wo. But by all means ये भी हो सकता है कि अब आपकी बस हो गई और आप सोच रहे हो कि आज तो मुकाते हैं, निकलते हैं. Either or, how do you see Pakistan 28 years from now in 2050? Seeing what you've seen now, knowing what you've known throughout your life, how do you see Pakistan? Political turmoil is notwithstanding, I think a country of 220 million people, 64% of which is under the age of 35, has no place else but to go up, right? 13% से आपकी adult population grow कर रही every year, and that trend will continue for the next few years. Growing a young population means that this is going to be a consumption economy that requires a production engine. हमें जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंजन हम इंटरनलाइज करेंगे उतने हम प्रॉस्परस होंगे. सो इन 2050 आई एक्चुअली सी अ पाकिस्तान दैट इज़ सेल्फ रिलायंट. आई सी अ पाकिस्तान जहाँ पे मिडिल क्लास की कंजम्पशन और मिडिल क्लास की इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट को कशकोल लेके दुनिया जहान नहीं जाना पड़ता. ऑर्गेनिक टैक्स कलेक्शन है, डेटा का यूज़ गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह है कि हम अपने कस्टमर्स को सही तरह सर्विस कर सकते हैं, और हम वो स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं लोगों पे जो कि स्किल्स ऑफ द फ्यूचर हैं. 2050 में जो स्किल्स ऑफ द फ्यूचर होंगी वो तो शायद हमें पता भी नहीं है, लेकिन उन स्किल्स तक पहुंचने के लिए हमें आज की स्किल्स ऑफ द फ्यूचर को इम्पार्ट करना है. टीच द पीपल द बेसिक्स. हर बच्चे को कोडिंग आनी चाहिए, हर बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए, हर बच्चे को एक ग्लोबल सिटीज़न बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए, और ये हमें इनकलकेट करना चाहिए. सो 2050 में अगर हम आज ये जर्नी शुरू करते हैं, मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे होंगे कि हम हो सकता है दुनिया की अगर 10 नहीं तो 20 बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक होंगे. हम दुनिया में अपनी राइटफुल प्लेस लेंगे जहाँ पे हम लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट्स के ऊपर अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हम अपने लोगों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, और उस पॉलिसी के अंदर हम अगले 100 साल, अगले 150 साल, अगले 500 साल के बारे में सोचेंगे. चाइनीज़ क्या कहते हैं कि you have to there's a famous proverb that escapes me right now, but it's along those lines. And Chinese strategy तो हम देखते हैं कि वो continuously 5-year plan, 10-year plan, 30-year plan के ऊपर चलती रही है, and that has been the reason for this. 1,000-year plan, right? They even have a 1,000-year plan which they don't talk about. And that has existed from centuries ago. तो देखें, हम एक ऐसा मुल्क हैं जो अभी तक अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर सका, लेकिन कब तक हम इसको डिले करते रहेंगे? For how long will we continue to live in the hope of a better Pakistan and not work towards building a better Pakistan? You have a responsibility, I have a responsibility, and everybody who lives in Pakistan has a responsibility कि हम अपने circles of influence में वो चीज़ करें जो कि 2050 में हमें अपनी दुनिया की rightful जगह पे ला के बिठाए. और वो rightful जगह हमारी top 10 economies, most educated country in the world, and a country that contributes significantly to the growth of the global economy. And that is where we are headed, inshallah. Makes sense. Atiya bhai, thank you so much for coming in and sharing all the insight. I hope that the future that you see, or at least hope for, we can all see and our kids can see
and should they choose, they are comfortable in choosing to stay in Pakistan. Unfortunately, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि recent times के अंदर I've heard के have lost the will to fight and want to relocate. It breaks my heart, but thank you for taking the time out and sharing all the insight. My pleasure. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं. What do you think about financial inclusion? What do you think about fintech companies, players, सादा पे, नया पे, banks going digital, legacy, fintechs? क्या आपकी फीलिंग्स हैं उनके बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं उनके बारे में. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसी के साथ साथ फेसबुक वाले नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे, TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. कैन जॉइन दैट एज वेल. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे आ रहा होगा. इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's a thought that counts. इसी के साथ वी आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर season 4. So if you are part of an agency or brand, you can reach out to us. The email address is somewhere on the channel. We'd love to have that conversation. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.